عرصہ دراز کی بات ہے، اصفہان پر ایک فیروز نامی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ نہایت نیک دل، خدا ترس، رعایا سے محبت کرنے والا تھا اور ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کا خیال رکھنے والا انسان تھا۔ ایک اچھے بادشاہ میں جتنی خوبیاں ہونی چاہیے وہ سب بادشاہ فیروز میں موجود تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ رعایا میں سب چھوٹے بڑے اسے دل و جان سے چاہتے تھے اور اس کی عمر درازی کی دعائیں مانگتے تھے۔ بادشاہ کے انصاف کا بھی خوب چرچا تھا۔ ملک میں ہر طرف امن و امان قائم تھا۔ خزانے سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بادشاہ کی ملکہ بھی بہت عقل مند اور اچھے دل کی عورت تھی، جس سے 14-15 برس کی ایک خوبصورت شہزادی تھی۔ بادشاہ اسے بہت چاہتا تھا۔ شہزادی اسے دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز تھی۔ غرض یہ کہ بادشاہ دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال تھا، لیکن پھر بھی ہمیشہ غمگین اور افسردہ رہتا۔ اسے دن رات صرف ایک غم کھائے جا رہا تھا اور وہ غم تھا ملکہ کی بیماری۔ ملکہ کافی عرصے سے بیمار تھی۔ بادشاہ نے ملکہ کا علاج ملک کے بڑے بڑے حکیموں اور طبیبوں سے کروایا۔ اس کے لیے دوسرے ملکوں سے بھی حکیم بلوائے گئے، لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا، بلکہ مرض بڑھتا ہی گیا۔ شہزادی ماں رخ بھی اپنی والدہ کے لیے سخت پریشان رہتی تھی اور وہ اپنا تمام تر وقت ملکہ کے پاس گزارتی۔ آج بھی وہ حسب معمول ملکہ کے پاس بیٹھی تھی۔ ملکہ نے تکلیف سے کراہتے ہوئے مگر شفقت بھرے لہجے میں کہا، تم اتنی پریشان کیوں رہتی ہو بیٹی؟ میرے لیے فکر مند نہ ہو، اللہ نے چاہا تو کچھ دنوں میں اچھی ہو جاؤں گی۔ شہزادی نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، امی حضور، مجھ سے آپ کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ ملکہ نے اسے مزید تسلی دیتے ہوئے کہا، جاؤ بیٹی، جا کر کھیلو، انشاءاللہ یہ بیماری جلدی جاتی رہے گی۔ شہزادی نے ماں کے منہ سے یہ تسلی کے الفاظ سنے تو اس کی پریشانی کسی حد تک کم ہو گئی اور وہ ملکہ کے کہنے پر باغ میں جا کر سہیلیوں سے کھیلنے لگی۔ باغ میں ہر طرف پھولدار پودے لگے ہوئے تھے، گلاب، چنبیلی، کرنا، رات کی رانی، جعفری، گیندا، سورج مکھی، یعنی کوئی بھی پھول ایسا نہ تھا جو باغ میں موجود نہ ہو۔ ان پھولوں کی وجہ سے ہر طرف بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور جگہ جگہ فوارے اور بارادریوں نے تو باغ کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ یہ باغ بہت وسیع رقبے میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کے ایک حصے میں پھلدار درخت اور پودے بھی تھے جو پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ یہ پھل نہایت رسیلے اور خوش ذائقہ تھے۔ شہزادی نے اپنی سہیلیوں سے باغ میں کچھ دیر ادھر ادھر کھیلنے کے بعد کہا، آؤ چل کر کچھ تازہ پھل کھائیں، اور سب اچھلتی کودتی باغ کے پھلوں والے حصے میں پہنچ گئی کہ اسی وقت زور زور سے آندھی چلنے لگی اور بوندا باندی شروع ہو گئی۔ شہزادی اور اس کی سہیلیاں حیران تھی کہ ابھی تو آسمان بالکل صاف تھا، پھر یہ آندھی اور بارش کیسی؟ وہ اسی حیرانی کے عالم میں کھڑی تھی کہ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ چند لمحوں بعد فضا صاف ہوئی تو انہوں نے اپنے سامنے ایک نہایت ڈراؤنی شکل کے دیو کو ہنستے ہوئے پایا۔ دیو کے جسم پر صرف ایک لنگوٹ تھا اور منہ سے 2 بڑے بڑے دانت باہر نکلے ہوئے تھے جو اس کی شکل اور بھی بھیانک اور ہیبت ناک بنا رہے تھے۔ دیو نے اپنے لمبے اور بھدے ہاتھ، جن کی انگلیوں پر بڑے بڑے ناخن تھے، آگے بڑھائے اور کہکے لگاتے ہوئے شہزادی کو اٹھا لیا۔ اس کے کہکوں سے فضا گونج رہی تھی۔ شہزادی کی سہیلیاں تو دیو کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ دیو شہزادی کو لے کر چلا گیا۔ شہزادی ماں رخ کی سہیلیوں کو جب ہوش آیا تو شہزادی کو نہ پا کر وہ بہت پریشان ہوئی۔ رنجیدہ حال بادشاہ کے پاس پہنچی اور تمام ماجرا کہہ سنایا۔ بادشاہ فیروز، جو پہلے ہی ملکہ کی بیماری کی وجہ سے غمزدہ تھا اور سوچوں میں گم رہتا تھا، اس نے جب یہ سنا کہ اس کی بیٹی شہزادی ماں رخ کو دیو اٹھا کر لے گیا ہے تو اس پر تو جیسے غموں کے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے۔ اسے ایسا صدمہ پہنچا کہ وہ برسوں کا بیمار نظر آنے لگا۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنے وزیر عاقل کو، جو بڑا باتدبیر آدمی تھا، بلوا بھیجا۔ وزیر نے بھی جب شہزادی کے متعلق سنا کہ اسے کوئی دیو اٹھا کر لے گیا ہے تو اسے بھی سخت رنج ہوا۔ اس نے اسی وقت بادشاہ کے حکم سے چاروں طرف آدمی بھیجے کہ شہزادی ماں رخ کو لے جانے والے دیو کو تلاش کر کے اسے عبرتناک سزا دی جائے اور شہزادی کو اس کے پنجے سے رہائی دلائی جائے۔ وزیر نے بادشاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، عالم پناہ، آپ اطمینان رکھیں، شہزادی صاحبہ جلد ہی ہم تک پہنچ جائیں گی۔ وزیر عاقل کے بھیجے ہوئے آدمیوں نے برق رفتار گھوڑوں پر سوار ملک کا کونا کونا چھان مارا، لیکن وہ دیو یا شہزادی کو پانے میں ناکام رہے۔ اب تو بادشاہ بہت ہی فکر مند ہوا اور اس نے وزیر عاقل کے مشورے سے ملک میں منادی کرا دی کہ جو شخص شہزادی ماں رخ کو دیو کی قید سے آزاد کرا لائے گا اس کو مالا مال کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کو سنتے ہی ملک کے ہر حصے سے لوگ شہزادی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، کیونکہ ساری رعایا بادشاہ کی رحمدلی اور عدل و انصاف کی وجہ سے اس پر جان چھڑکتی تھی، لیکن کسی کو بھی کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ کچھ تو مایوس ہو کر واپس آ گئے اور کئی ایک راہ کی مشکلات اور منزل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بادشاہ کو اس کا بہت افسوس ہوا۔ وہ بیٹی کی وجہ سے بے حال رہنے لگا۔ ایک دن ایک نوجوان بادشاہ فیروز کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا، حضور والا، میں شہزادی ماں رخ کی تلاش میں جاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، لڑکے تم کون ہو؟ ہم نہیں چاہتے
एक तो हमारी बेटी हमसे जुदा हो गई है और दूसरा तुम जैसे नौजवान हमारी वजह से दुख उठाएं। हो सकता है जान भी गंवाना पड़े। अब हम मायूस हो चुके हैं। नौजवान ने कहा, अलमपरा, मैं शहर से दूर एक देहात में अपनी मां के साथ रहता हूं। मेरा बाप फौत हो चुका है और मैं अपनी मां से इसके लिए इजाजत लेकर आया हूं। मेरा नाम शहबाज है। फिर नौजवान ने बड़ी जुर्रत से कहा, बादशाह सलामत, आप मुझे इजाजत दें। खुदा ने चाहा तो जरूर कामयाब लौटूंगा। मैं एक किसान बाप का बेटा हूं और बचपन ही से मेहनत मुशक्कत का आदी हूं। रास्ते की मुश्किलात मेरे सामने कुछ नहीं है। बादशाह ने शहबाज की हिम्मत और हौसला देखकर कहा, शहबाज, हमें यकीन है कि तुम जरूर कामरान लौटोगे और हमारे दिल को सरूर और आंखों को ठंडक पहुंचाओगे। बादशाह फिरोज ने शहबाज को रास्ते के लिए कुछ सामान, तलवार और एक बहुत अच्छा घोड़ा सवारी के लिए देकर रवाना किया। शहबाज की रवानगी के वक्त वजीर आकिल ने भी कहा, बादशाह सलामत, मुझे उम्मीद है कि ये नौजवान जरूर शहजादी साहबा को उस नाबकार देव से रिहा कराकर लाएगा। बादशाह ने कहा, हाँ वजीर आकिल, तुम्हारी जुबान अल्लाह मुबारक करे। शहबाज घोड़े पर सवार अनजानी मंजिल की तरफ चल पड़ा। 3 रोज के मुसलसल सफर के बाद उसका गुजर एक रेगिस्तान से हुआ। गर्मी शबाब पर थी। शहबाज का गर्मी की वजह से बुरा हाल था। प्यास की वजह से उसका हलक खुश्क हो रहा था। साथ लाया हुआ पानी और दूसरी खाने पीने की चीजें भी खत्म हो चुकी थी। उसने पानी की तलाश में घोड़ा इधर उधर दौड़ाया, लेकिन वहां तो कहीं पानी का नामो निशान भी न था। घोड़ा भी काफी देर मुसलसल दौड़ने की वजह से गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त न कर सका और गिरकर मर गया। उसने खुद पानी की तलाश में भागना शुरू किया, लेकिन हद नजर तक रेत ही रेत थी। थकावट और गर्मी की वजह से वो निढाल हो रहा था। फिर उसके लिए एक नई मुसीबत नाजिल हुई कि आंधी चलना शुरू हो गई और चंद मिनटों में ही उसने तूफान की सूरत इख्तियार कर ली। रेगिस्तान की आंधियां बहुत खतरनाक होती हैं। काफिलों के काफिले तबाह हो जाते हैं। शहबाज एक निडर और मजबूत जिस्म वाला नौजवान होने के बावजूद अपने हवास बजा न रख सका और बेहोश होकर गिर पड़ा। उसने किसी को कहते सुना, शहबाज, तुम एक नेक मकसद के लिए निकले हो। कामयाबी जरूर तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम सीधे मशरिक की जानिब जाओ। कुछ फासले पर तुम्हें एक झोंपड़ा मिलेगा। वहां एक बुजुर्ग हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे। शहबाज को जब होश आया तो उसने महसूस किया कि अब ना तो प्यास की शिद्दत है और ना ही वो ज्यादा थकावट महसूस कर रहा था। उसे गैबी आवाज याद आई और कुदरत की तरफ से इमदाद समझकर मशरिक की तरफ चल खड़ा हुआ। कुछ देर बाद उसे खजूर के दरख्तों का एक झुंड नजर आया। वो समझ गया कि यही वो झोंपड़ा होगा जिसकी निशानदेही उस आवाज के जरिए की गई थी। उसका ख्याल दुरुस्त निकला। दरख्तों के दाएं जानिब एक झोंपड़ा था। दरख्तों के दाएं जानिब एक झोंपड़ा था जिसकी छत खजूर के पत्तों से बनाई गई थी। उसने इत्मीनान का सांस लिया और झोंपड़े के अंदर चला गया। क्या देखता है कि एक सफेद रेश बुजुर्ग इबादत में मशगूल हैं। शहबाज उनकी इबादत से फारिग होने के इंतजार में एक तरफ खामोशी से बैठ गया। जब बुजुर्ग इबादत और तस्बीह से फारिग हुए तो उन्होंने शहबाज को देखकर, जिसके कपड़े रेत से अटे हुए थे, पूछा, तुम कौन हो और इस वीराने में क्या लेने आए हो? शहबाज ने उन्हें बताया, मेरा नाम शहबाज है और मैं अस्फहान का रहने वाला हूं। हमारे मुल्क की शहजादी को एक देव उठाकर ले गया है। मैं उसकी तलाश में हूं। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, वो देव की मलिका का कासिद था। कई दिनों से सुनने में आ रहा है कि देव की मलिका, जो पहले निहायत हसीनो जमील थी, बदकलामी और बदमिजाजी की वजह से सबसे बड़े जादूगर साहिर ने अपने जादू के जोर से उसका आधा चेहरा बिल्कुल खराब कर दिया है, जिससे उसकी शक्ल बहुत बदसूरत हो गई है। उसने अपने मुल्क में ये ऐलान कराया है कि जहां कहीं कोई खूबसूरत लड़की या औरत नजर आए उसे लाकर मेरे हुजूर पेश किया जाए, क्योंकि उसे काहिरा जादूगरनी ने बताया कि अगर वो 1000 खूबसूरत लड़कियों के खून से 14वीं की रात को अपना चेहरा धोए तो वो पहले की तरह हसीन हो जाएगी। इसलिए उसके गुलाम देव जहां कहीं भी अच्छी सूरत की लड़की देखते हैं उठाकर ले आते हैं और बदसूरत मलिका उन्हें पत्थर का बुत बनाकर अपने महल के तहखाने में रखवा देती है, ताकि जब उनकी तादाद 1000 हो जाए तो वो अपना मकसद पूरा कर सके। इलावा अजीम, बदसूरत मलिका के पास अपने दादा के वक्त की बहुत से तिलिस्मी तोहफे हैं, जिनकी वजह से वो देवों पर हुकूमत कर रही है, और जो भी उसके मुल्क में जाता है वो उसके जुल्म से बचकर जिंदा वापस नहीं आता। बुजुर्ग ने ये तमाम बातें बताने के बाद कहा, बेटा, अब तुम जान गए होगे कि शहजादी बदसूरत मलिका की कैद में है और वहां जाना बहुत खतरनाक और जान जोखों का काम है। इसलिए मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि जिस इरादे से तुम निकले हो वो इरादा तर्क कर दो और अपने घर वापस लौट जाओ। शहबाज ने बड़े अदब से कहा, जनाब, मैं घर से पक्का इरादा करके निकला हूं कि या तो शहजादी को तलाश करके ले जाऊंगा या अपने नेक सीरत बादशाह और उसकी बेटी के लिए अपनी जान तक दे दूंगा। मेहरबानी फरमाकर आप रहनुमाई फरमाएं ताकि मैं अपना मकसद पूरा कर सकूं। उस बुजुर्ग ने शहबाज का जब ये अज़्म देखा तो बोले, मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर शहजादी को बदसूरत मलिका की कैद से आजाद करा लाओगे। अगर तुमने हिम्मत ना हारी तो खुदा भी तुम्हारी मदद करेगा। फिर उन्होंने कोने में रखे हुए थैले को उठाया और उसमें से एक चादर निकालकर शहबाज को देते हुए कहा, लो बेटा, ये चादर ले लो। जब तुम इसे ऊपर ओढ़ लोगे तो दूसरों की नजरों से गायब हो जाओगे, लेकिन तुम सबको देख सकोगे।
और दरिया में ये कश्ती का काम देगी। फिर एक सेमत इशारा करते हुए कहा, इस तरफ सीधे चले जाओ। तकरीबन 5 रोज के सफर के बाद तुम एक बहुत बड़े फाटक के करीब पहुंच जाओगे। उसी फाटक की दूसरी तरफ देवों का मुल्क है और उस पर बदसूरत मलिका राज करती है। शहबाज ने उस बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और उस तरफ रवाना हो गया। शहबाज दिन को सफर करता और रात को आराम। इस तरह चलते चलते वो तीसरे रोज एक सरसब्ज जंगल में जा पहुंचा। हर तरफ दरख्त रसीले और पके हुए फलों से लदे हुए थे, जो कि उसने सैर होकर खाए। शाम होने को थी, इसलिए वो एक अच्छी सी जगह मुंतखब करके वहां बैठ गया। थकावट की वजह से उसकी पलकें भारी होने लगी और वो वहीं सो गया। शहबाज को भी सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि गुर्राहट की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई और उसने अपने सामने एक खूंखार चीते को देखा जो उसे घूर रहा था और उस पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। शहबाज उछलकर खड़ा हो गया और नयाम से तलवार निकाल ली। चीता गुर्राकर पलक झपकने में शहबाज पर आ रहा। शहबाज ने भी बड़ी फुर्ती दिखाई और एक तरफ हट गया। चीता तलवार का वाल खाती जता देखकर बड़ी तेजी और गुस्से से उसकी तरफ झपटा और इस दफा भी शहबाज ने कमाल चाबक दस्ती से अपने आप को उससे बचा लिया और चीता अपने ही जोर में सामने वाले दरख्त से जा टकराया, जिस पर चीते के गुस्से की इंतहा न रही और उसने फौरन पलटते हुए अपने अगले पंजों से शहबाज पर हमला किया। शहबाज ने भी तलवार का वार किया और पीछे हट गया। तलवार की नोक चीते की गर्दन से टकराई और उसकी गर्दन से खून की नन्ही नन्ही बूंदें निकलने लगी। चीता फौरन आगे बढ़ा और इस जोर से पंजा शहबाज के बाएं शाने पर मारा कि शहबाज दूर जा गिरा और उसके शाने से खून उबल पड़ा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके बाजू को उसके जिस्म से अलहदा कर दिया गया हो। अब तो शहबाज को भी बहुत गुस्सा आया और उठकर चीते पर दाएं हाथ से तलवार के पै दर पे हमले करने लगा। इन हमलों के दौरान शहबाज का पांव जो फिसला तो गिर पड़ा। चीता जो जबरदस्त हमला करने के लिए पहले ही जस लगा चुका था, शहबाज के ऊपर से होता हुआ दूर जा गिरा। शहबाज के लिए अच्छा मौका था और उसने फौरन खड़े होकर चीते की पीठ की तरफ से तलवार का इस जोर से वार किया कि तलवार चीते की गर्दन में उतरती चली गई। मरते हुए चीते की उगराहटें बहुत भयानक थी। शहबाज के कंधे से काफी से ज्यादा मिकदार में खून निकल जाने और तकलीफ की शिद्दत से उस पर गशी सी तारी हो गई और वहीं गिर पड़ा। सुबह काफी दिन चढ़े बाद बेदार हुआ। उसने किसी के बातें करने की आवाज सुनी और हैरत से इधर उधर देखने लगा, क्योंकि वहां तो कोई नहीं था। इस हैरानगी के आलम में अपने कंधे की तकलीफ को कुछ देर के लिए भूल गया। अब जो उसने सर उठाकर ऊपर देखा तो उसी दरख्त पर जिसके नीचे वो बैठा था, 2 परिंदों को आपस में इंसानों की तरह गुफ्तगू करते हुए पाया। शहबाज उन परिंदों को बड़ी दिलचस्पी और हैरत से देख रहा था। वो परिंदे बड़े अजीबो गरीब थे। उनके पर सुनहरी थे, दुम काफी लंबी थी और सर पर नारंगी रंग का ताज था। एक का ताज बड़ा और दूसरे का छोटा था। एक परिंदा जिसका ताज बड़ा था दूसरे से कह रहा था, अगर कोई इस दरख्त के पत्ते जिस पर हम बैठे हैं जलाकर उसकी राख आंखों में डाल ले तो उसे अंधेरे में भी नजर आने लगेगा। दूसरे ने पूछा, क्या इसका कोई और फायदा भी है? पहले ने कहा, हाँ, इस राख का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी एक चुटकी किसी बीमार को चाहिए, उसका मर्ज कितना ही पुराना हो, खिला दी जाए तो वो अच्छा भला हो जाएगा। इसके अलावा ये जख्म ठीक करने के लिए भी करामद है। फिर अचानक दूसरा परिंदा बोला, नीचे तो देखो, एक लड़का बैठा है। पहला बोला, हाँ, हमने तो उसे देखा ही नहीं। ये कहा और दोनों उड़ गए। शहबाज ने ये तमाम बातें सुनी तो बहुत खुश हुआ और कंधे की तकलीफ की परवाह किए बगैर उसने दरख्त के बहुत से पत्ते तोड़े। फिर चंद खुश्क पत्ते एक पत्थर पर रखकर दूसरा पत्थर इस पर जोर से मारा तो एक चिंगारी निकली जो सूखे पत्तों ने पकड़ ली। इस तरह उसने आग जलाकर तोड़े हुए पत्तों की राख बनाई। सबसे पहले उसने वो राख थोड़ी सी अपने जख्म पर लगाई तो उसे परिंदों की बातों की सच्चाई का यकीन आ गया। उसका जख्मी कंधा फौरन ठीक हो गया। बाकी राख उसने अपने पास महफूज कर ली। काफी से ज्यादा खून निकल जाने की वजह से वो नकाहत महसूस कर रहा था। खुदा ने ऐसा करम किया कि उसका एहसास भी जाता रहा। उसने कुछ फल दरख्तों से तोड़कर खाए और कुछ आइंदा के लिए लेकर फिर सफर पर रवाना हुआ। वो ऊंचे नीचे इलाकों से गुजरता हुआ एक गार के दहाने पर जा पहुंचा। गार जो खौफनाक शेर के खुले हुए मुंह की मुशाबत रखता था, उसके दहाने पर एक खतरनाक सांप बैठा था। बुजुर्ग की हिदायत के मुताबिक शहबाज को अब इसी गार में सफर जारी रखना था। सांप को देखकर उसे बड़ी तशवीश हुई। उसने चाहा कि वो सांप से बचकर आगे बढ़ जाए, लेकिन खौफनाक सांप जिसके कई सर थे और अपने हर मुंह से आग बरसा रहा था, उसके रास्ते में हायल हो गया। अब तो शहबाज के लिए सांप से मुकाबला जरूरी था। उसने तलवार निकाली और बढ़कर सांप पर हमला कर दिया। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा होने के बावजूद सांप फुर्ती से उछलकर एक तरफ को हट गया और अपने हर मुंह से शहबाज पर आग फेंकने लगा। शहबाज भी एक लम्हा जाया किए बगैर पीछे हट गया और फिर बड़ी तेजी से उसने आगे बढ़कर वार किया और सांप का एक सर उसके तन से जुदा कर दिया। सांप की आंखों से शोले से निकलने लगे। एक जोर का पलटा खाकर उसने अपनी लंबी दुम आगे बढ़ाई और उससे शहबाज को कमर से पकड़ लिया। शहबाज ने अपने आप को उसकी गिरफ्त से बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाब ना हो सका। सांप ने दुम का दायरा तंग करना शुरू कर दिया, जिससे शहबाज का दम घुटने लगा, लेकिन उसने अपने हवास बजा रखे और तलवार के वार पर वार करने लगा, जिससे सांप की गिरफ्त कदरे कम हुई। उसने उस वक्त को गनीमत जाना और अपने पूरे जोर से एक ऐसा हमला किया
کہ सांप के सरों के टुकड़े होकर इधर उधर बिखर गए। सांप के खून के कतरे जहां जहां गिरे थे उस जगह को आग लग जाती थी। शहबाज ने अपने आप को उसके खून की आतिशी छींटों से बचा लिया। इस लड़ाई से फारे होकर कुछ देर सस्ताने के बाद वो फिर आगे बढ़ा और गार के अंदर दाखिल हो गया। उसे बहुत हैरानी हुई कि गार में अंधेरा तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन घुटन का एहसास बिल्कुल नहीं था। उसने खामोशी से अपना सफर जारी रखा। अभी वो कुछ ही फासले तय कर पाया था कि अंधेरा इतना बढ़ गया कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। अचानक उसने किसी चीज से ठोकर खाई और गिरते गिरते बचा। इसी असना में उसने किसी को बहुत दर्दनाक आवाज में रोते सुना। यह आवाज उसके अकब से आ रही थी। वो बड़ा हैरान हुआ कि अभी तो ये रास्ता तय करके आया हूं। उस वक्त उसके अलावा और कोई भी नहीं था, फिर ये आवाज कहां से आ रही है? अचानक उसे बुजुर्ग की हिदायत याद आई कि खबरदार, रास्ते में अगर तुम किसी भी किस्म की आवाज सुनो तो पीछे हरगिज मुड़कर न देखना, वरना मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए उसने उन आवाजों को नजरअंदाज करके आगे का इरादा किया। दोबारा एक पत्थर से ठोकर खाई और गिर पड़ा। वो सोच रहा था कि इस बहुत ज्यादा अंधेरे में किस तरह सफर जारी रखा जाए और फिर हो सकता है कि किसी और आफत से भी दो चार होना पड़े, कि अचानक उसे वो राख याद आई जो उसने जख्म पर लगाई थी। तो जख्म ठीक हो गया था। शहबाज ने उसकी एक चुटकी अपनी आंख में डाली तो उसे गार का हर पत्थर साफ नजर आने लगा। इस तरह वो एक रात और एक दिन मुतवातर चलता रहा। शाम के वक्त उसने शोर की आवाज सुनी, जैसे ऊंचाई से पानी गिर रहा हो। अब वो थकन से चूर था, इसलिए ये मालूम किए बिना कि आवाज कैसी है और कहां से आ रही है वहीं पड़कर सो रहा। जब बेदार हुआ तो ये अंदाजा न कर सका कि वो कितनी देर सोता रहा है। अलबत्ता वो जान गया था कि यह रात का वक्त हरगिज नहीं। वो आगे बढ़ा। शोर बदस्तूर था और जितना आगे बढ़ रहा था शोर भी उतना बुलंद होता जा रहा था। कुछ देर बाद उसे हवा के झोंकों से पता चल गया कि अब गार खत्म होने वाला है। 1 घंटे की मजीद मुसाफत तय करने के बाद वो उस खतरनाक गार से बाहर था। सामने एक दरिया ठाठे मार रहा था। गार में जो शोर वो सुन रहा था उसी दरिया के तेजी से चलते हुए पानी की आवाज की वजह से था। शहबाज दरिया के सामने खड़ा सोच रहा था कि दरिया को किस तरह पार किया जाए। पानी की तेजी से मालूम होता था कि इस दरिया को बूर करना मुश्किल तो क्या नामुमकिन है। अभी खड़ा वो इन्हीं बातों का जायजा ले रहा था कि ऊपर से बड़े बड़े और अजीबोगरीब परिंदों के गौल ने उस पर हमला कर दिया। उनसे बचने के लिए शहबाज ने तलवार निकाल ली। परिंदे जिनकी चोंचें लंबी और अंदर की तरफ मुड़ी थी और पंजे काफी मजबूत थे, बहुत ऊंची परवाज के साथ एकदम नीचे आते और उस पर झपटने की कोशिश करते। शहबाज ने भी काफी चुस्ती का मुजाहरा किया और वो परिंदों के हर हमले का पूरा दिफा कर रहा था और अपनी तलवार को बड़ी तेजी से चला रहा था। एक बार जो परिंदा उसकी तलवार की जद में आ जाता वो बचकर न जाता। उनकी चीखें भी बड़ी करख थीं, कान पड़ी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। शहबाज ने उनमें से कई एक को तो मौत के घाट उतार दिया, मगर उनके जोशो खरोश में फर्क न आया और वो मुसलसल हमले कर रहे थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि कवि हैकल परिंदे ने शहबाज को अपने पंजों से ऊपर उठा लिया। शहबाज ने फौरन अपनी तलवार से उस पर हमला कर दिया, जिससे परिंदे के पंजों की गिरफ्त ढीली हुई और वो नीचे आ गिरा। लेकिन खुशकिस्मती से जमीन नमदार थी, इस वजह से उसे कोई खास चोट न आई। अब तो परिंदों की तादाद में भी इजाफा होना शुरू हो गया था। शहबाज ने जब ये देखा तो उसने अपने आप से कहा कि अब मुकाबला बेसूद है, इसलिए वो वापस गार की तरफ भागा। उसने खाई में पनाह ली। परिंदे देर तक उसका निकलने के इंतजार में वहां उड़ते रहे जहां शहबाज छुपा हुआ था, लेकिन आखिर जब शाम का अंधेरा फैलने लगा तो मायूस होकर वापस लौट गए। शहबाज ने खुदा का शुक्र अदा किया और खाई से बाहर निकल आया। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल रहा था, इसलिए उसने इरादा किया कि रात यहीं किसी महफूज जगह पर बसर की जाए। लेकिन फिर यह सोचकर सुबह के उजाले में कहीं फिर वही खूनखार परिंदे ना आ जाए, इसलिए दरिया अबूर करने के लिए उसी वक्त कोई तदबीर की जाए। नाचार तैर कर पार जाने के लिए दरिया में कूद पड़ा। पानी की रवानी में बहुत तेजी थी, इसलिए उसे तैरने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। वो पानी को चीर कर सीधा जाना चाहता था, लेकिन दरिया का बहाव जो शुमाल से जनूब की तरफ था उसे अपने साथ ले जाता था। वो अपनी पूरी कुव्वत सर्फ कर रहा था। 2 घंटे की मुसलसल जदोजहद के बाद वो दरिया में चंद गज का फासला भी तय न कर पाया था, लेकिन बदसूरत मलिका की कैद से शहजादी मारहू की आजादी के लिए वो उसे बड़ी मुश्किल में भी कूदने को तैयार था। इसलिए उसने एक बार फिर नए अज़म के साथ अपना काम शुरू किया। तैरते तैरते उसके बाजू शल हो गए। अब वो उस जगह से काफी दूर निकल आया था जहां से उसने तैरना शुरू किया था। अचानक सामने से एक बड़ा मगरमच्छ अपना मुंह खोले उसकी तरफ लपका। अब तो शहबाज के औसान खता हो गए कि क्या किया जाए। उसने मगरमच्छ से बचने के लिए बहुत इधर उधर हाथ पांव मारे, लेकिन ताकत जवाब दे रही थी। उसने खुदा को याद किया और फौरन उसे बुजुर्ग की दी हुई चादर याद आ गई। उसने फुर्ती से वो चादर कंधे पर रखी हुई गठली से निकाली और अपने ऊपर ओढ़ ली, जिससे वो मगरमच्छ जो बहुत ही लंबा चौड़ा खौफनाक था नजरों से ओझल हो गया, लेकिन वो खुद उसे देख रहा था। मगरमच्छ उसके गुम होने पर उसे ना पाकर वापस लौट गया। अचानक शहबाज को ख्याल आया कि उस बुजुर्ग ने जिनकी हिदायत पर अमल करके वो अब तक कई मुसीबतों से बच चुका था, कहा था कि वो इस चादर से कश्ती का काम भी ले सकता है। तो उसने उस वक्त जब मगरमच्छ काफी दूर चला गया और इस बात का खदशा न रहा कि अब वो उसे देख लेगा, अपने ऊपर से चादर उतारी उसे पानी पर फैला दिया। चादर कश्ती की तरह तैरने लगी।
وہ اس پر بیٹھا منزل کی طرف جا رہا تھا۔ اس دوران بھی کئی دریائی بلاؤں نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ بہت زیادہ تھکا ہونے کے باوجود اس نے سب کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ ساری رات اور دوسرا آدھا دن سفر کرنے کے بعد وہ دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ سامنے ہی کچھ فاصلے پر وہ ایک قلعہ نما عمارت دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہیں سے دیووں کا ملک شروع ہوتا ہے اور وہ ظالم اور بدصورت ملکہ اس پر حکومت کرتی ہے جس کے لیے وہ اتنے دن سے سفر کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ شہباز نے چادر پانی سے نکال کر دوبارہ اس گٹھڑی میں رکھی جس سے نکالی تھی اور اس عمارت کی جانب قدم بڑھائے۔ اس نے تھوڑا سا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اس نے دور ہی سے اس عمارت کا بہت بڑا پھاٹک دیکھ لیا جس پر ہر طرف انسانی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھی۔ پھاٹک بند تھا اور دو کبھی ہیکل دیو تلوار لیے پہرا دے رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا یہ انسانی کھوپڑیاں انہی بے گناہ انسانوں کی ہوں گی جو اس سے پہلے یہاں ہیں اور دیو نے انہیں قتل کر دیا، اس لیے اس پھاٹک سے اس ملک میں داخل ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ اس نے دوسرے راستے کے لیے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی لیکن حد نظر تک ایک دیوار کھچی ہوئی تھی۔ شام ہونے والی تھی اس لیے اس نے مناسب سمجھا کہ رات کو یہیں کسی محفوظ مقام پر آرام کیا جائے، صبح اس کے متعلق سوچا جائے کہ دیو کے ملک میں داخلہ کس طرح ممکن ہے۔ وہ ایک ایسی جگہ جہاں دیو اسے دیکھ نہ سکیں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ گزشتہ رات کا جاگا ہوا تو تھا ہی، خراٹے لینے لگا۔ شہباز دوسرے دن جب صبح کو جاگا تو اس نے دیکھا پھاٹک کھلا ہوا ہے اور وہاں پہرے دار دیو بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا چلو اچھا ہے، اب اس عمارت کے اس پار جانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اس نے پھاٹک کے قریب پہنچ کر دیکھا تو اس پر یہ حقیقت ظاہر ہو گئی کہ دونوں پہرے دار دیو کے سر کٹے ہوئے ہیں اور دونوں کی لاشیں کونے میں پڑی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے انہیں ابھی ابھی تلوار سے قتل کیا ہو۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پھاٹک کے اندر داخل ہو گیا تو یہ ملک کا داخلی دروازہ تھا۔ شہر کے آثار وہاں سے کافی دور نظر آ رہے تھے۔ شہباز شہر کی جانب روانہ ہوا۔ کافی فاصلے طے کرنے کے بعد اسے سامنے ایک نوجوان جاتا ہوا نظر آیا۔ اب اس پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ دیو کی موت اسی نوجوان کا کارنامہ ہے جو ضرور بہت بہادر ہوگا۔ چل کر اس سے ملنا چاہیے کہ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک دیو بڑا سا چھرا لیے اس نوجوان پر پشت کی طرف سے حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ شہباز بڑی احتیاط اور سرعت کے ساتھ آگے بڑھا، پھر تلوار کے ایک ہی وار سے دیو کا سر اس کے دھڑ سے علیحدہ کر دیا۔ دیو کا بہت بڑا جسم دھڑام سے نیچے گرا اور اس کی آخری چیخ بہت بھیانک تھی۔ نوجوان کھڑا حیرت اور خوشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شہباز سے کہا شکریہ دوست، تمہاری بروقت مت سے میری جان بچ گئی، ورنہ بے خبری میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ شہباز بولا اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو میرا انسانی فرض تھا کہ دوسرے انسان کو مصیبت میں گھرا دے کر اس کی مدد کروں۔ پھر اسے اپنے متعلق سب کچھ بتا کر پوچھا نوجوان تم کون اور یہاں کیسے؟ نوجوان نے جو بڑی اچھی شکل و صورت اور صحت کا مالک تھا شہباز کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں یونان کا شہزادہ ہوں، میرا نام طاہر ہے، روم کے بادشاہ کی بیٹی شہزادی یاسمین جسے میں نے بچپن میں دیکھا تھا، اس وقت بھی وہ کافی خوبصورت اور سمجھدار تھی اور میں اسے اسی وقت سے پسند کرتا ہوں۔ اب تو اس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ پھول کی طرح نازک اور نہایت حسین و جمیل ہے اور اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ بہت عقل مند اور سلیقہ شعور ہے۔ ایک دن شہزادی یاسمین کے والد یعنی شاہ روم کی طرف سے ایک پیغمبر آیا۔ اس نے بتایا کہ چند روز ہوئے شہزادی کو ایک دیو اٹھا کر لے گیا ہے، ہر طرف تلاش کیا گیا ہے لیکن ہم شہزادی کو پانے میں ناکام رہے ہیں۔ تو یہ سن کر میرے ابا حضور بہت مغموم ہوئے اور میرے پاؤں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ آج کل دیووں کی ملکہ جو بڑی بدصورت ہے، اس کے چند خوشامد پسند دیو نے یہ کام شروع کر رکھا ہے کہ جہاں کسی خوبصورت لڑکی یا عورت کو دیکھتے ہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ انہی کی شرارت ہے، اس لیے میں نے اسی وقت ابا حضور سے شہزادی کی تلاش میں جانے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے مجھے روکا لیکن میں شہزادی یاسمین کے لیے ہر مصیبت میں کودنے کے لیے تیار تھا، اس لیے میرے بہت زیادہ اصرار پر انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد شہزادہ طاہر نے شہباز کو مزید اپنے متعلق بتاتے ہوئے کہا کہ شہزادی کی بازیابی کے لیے وہ کھانے پینے کا بہت سا سامان لے کر ایک سبک رفتار گھوڑے پر سوار نکل کھڑا ہوا۔ کئی روز کے سفر کے بعد اس کا گزر ایک بہت ہی خوبصورت اور عالیشان باغ کے قریب سے ہوا۔ وہ گھوڑے سمیت باغ کے اندر چلا گیا، گھوڑے کو ایک درخت سے باندھ کر دوسرے درخت کے نیچے صاف ستھری جگہ پر لیٹ گیا تاکہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ باغ میں ہر طرف خوشبودار پھول کھلے ہوئے تھے جس سے سارا باغ مہک رہا تھا۔ شہزادہ طاہر پر سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے جلدی غنودگی طاری ہونے لگی۔ ابھی نیند نے اس پر مکمل غلبہ نہیں پایا تھا کہ اس نے گھنگرو کی آواز سنی، اس کے ساتھ ہی مترنم آواز میں گیت گایا جانے لگا۔ وہ حیرانی کے عالم میں اٹھ بیٹھا کہ جب وہ باغ میں داخل ہوا تھا تو یہاں کوئی بھی نہ تھا، پھر یہ آواز کیسی؟ کھڑے ہو کر چاروں طرف نظریں جو دوڑائیں تو دائیں جانب باغ میں ایک میلہ سا نظر آیا جسے دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ وہ میلہ پریوں کا تھا۔ مختلف رنگ برنگے لباس پہنے پریاں ادھر ادھر آ جا رہی تھی اور کچھ پریاں عجیب و غریب سازوں پر آواز کا جادو جگا رہی تھی۔ کئی ایک انواع و اقسام کے خوان لیے ضیافت میں مصروف تھیں تو کچھ رقص کر رہی تھی۔ درمیان میں ایک تخت پر جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے ایک بہت ہی خوبصورت پری بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر ایک نفیسہ تاج تھا، تاج میں بہت ہی قیمتی موتی لٹک رہے تھے۔
वो परियों की मलिका नजर आती थी और सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। शहजादा ताहिर हर चीज से बेखबर उन्हें देखने में मगन था कि कई परियों ने आकर उसे घेर लिया और कहा, चलो मलिका के पास। शहजादे ने पूछा, मेरा कसूर क्या है जो आप सब ने मुझे पकड़ लिया है? उनमें से एक परी बोली, इसका जवाब तो तुम्हें हमारी मलिका ही देंगी। उसे मजबूरन उनके साथ चलना पड़ा। परियां उसे लेकर मलिका के सामने पहुंची। मलिका ने उसकी तरफ देखकर बड़े गुस्से से पूछा, आदमजाद तुम कौन हो और तुम्हें इस बाग में दाखिल होने की जुर्रत कैसे हुई? शहजादा ताहिर ने कहा, मैं मुसाफिर हूं और देवों की मलिका को उसके किए हुए जुल्म की सजा देने के लिए निकला हूं। सफर के दौरान मैंने सोचा 2 घड़ी आराम कर लिया जाए। मैं इस बात से बिल्कुल लाइम था कि इस बाग में दाखिल होना मना है। इलावा अज़ीम परियों की मलिका, मुझसे कोई ऐसा जुर्म भी नहीं हुआ जिस पर आपको इतना गुस्सा है। परिया की मलिका ने बहुत ज्यादा गुस्से से कहा, देवों की मलिका से हमारी भी दुश्मनी है, लेकिन हम उसे बिल्कुल माफ नहीं करते जो हमारे बाग में बगैर इजाजत दाखिल होता है। इसके अलावा तुम गुस्ताख भी हो, इतनी बेबाकी से हमारे सामने बोल रहे हो। शहजादा ताहिर ने कहा, मलिका आलम, मैं भी यूनान की अजीम सल्तनत का शहजादा हूं। हमारे यहां तो ऐसा कोई कानून नहीं कि इतनी मामूली सी बात पर सजा दी जाए। परियों की मलिका ने गरज कर कहा, शहजादे खामोश रहो, इंसानी दुनिया और यहाँ के कानून में फर्क है। इसके साथ ही उसने महफिल बर्खास्त करने का हुक्म दिया और खुद खड़ी हो गई और कहा कि शहजादे को कैद कर दिया जाए। उसके खड़े होते ही दूसरी चंद परियों ने उसे सहारा दिया। शहजादे ने देखा कि वो लंगड़ाकर चल रही है और चलते वक्त उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार भी पाए जाते हैं। शहजादा ताहिर को मलिका की सख्त कलामी के बावजूद उसे इस हालत में देखकर बहुत दुख हुआ। उसने परियों में से एक से पूछा जो उसे बाग के आखिरी हिस्से की तरफ ले जा रही थी, क्या तुम्हारी मलिका लंगड़ी है? परी ने कहा, नहीं, हमारी मलिका लंगड़ी नहीं। काफी अरसा से मलिका की पिंडली पर एक फोड़ा निकला हुआ है जिसने अब नासूर की शक्ल इख्तियार कर ली है। इसलिए मलिका ना ज्यादा चल फिर सकती है और ना ही तसल्ली से बैठ सकती है। इस फोड़े की वजह से उसका मिजाज भी सख्त हो गया है, वरना ऐसी महफिलों में जो आज हो रही है खुद गाती थी और नाचना भी खूब जानती है। बहुत इलाज मुआवजा किया गया लेकिन जरा भर भी फर्क नहीं आया। शहजादा ताहिर ने कहा, मैं तुम्हारी मलिका का इलाज करता हूं, खुदा ने चाहा तो उसकी पिंडली जल्दी ठीक हो जाएगी। उनमें से एक परी बोली, अरे तुम इलाज करोगे? यहां तो बड़े बड़े हकीमों के इलाज किसी काम नहीं आए। एक और कहने लगी, ले चलो, भागने के लिए बहाने तलाश करता है। तीसरी मुस्कुराती बोली, सच है, ये यहां से फरार होना चाहता है। शहजादा ताहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं जाना चाहूं तो तुम मुझे रोक नहीं सकती, लेकिन मैं मलिका का इलाज जरूर करना चाहता हूं। वो बोली, अगर वाकई बात है तो कल तक कैद ही में रहना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें मलिका के सामने पेश किया जाएगा। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। वो उसे लेकर एक दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे के कबाड़ खोले गए तो आगे सीढ़ियां थी जो जमीन के अंदर जा रही थी। गालिबन किसी तहखाने का रास्ता था। काफी सीढ़ियां तय करने के बाद एक बरामदे से गुजरते हुए उसे एक कमरे में ले गई जिसमें एक आदमी के आरामो आसाइश का मुकम्मल सामान था। उनमें से एक बोली, शहजादे आज की रात यहां रहो, यह कैदियों के लिए जगह नहीं है, लेकिन याद रखो अगर तुमने किसी किस्म का धोखा किया तो तुम्हें कैद खाना में डाल दिया जाएगा और सजा भी ऐसी दी जाएगी जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शहजादा ताहिर ने कहा, इत्मीनान रखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि मैं तुम्हारी मलिका से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। इसके बाद वो सब चली गई, लेकिन उस कमरे के दरवाजे को मुकफ्फल भी कर दिया गया। शहजादे ने सोचा, चलो आराम करने के लिए ये एक अच्छी जगह है, तमाम सफर की थकान जाती रहेगी। फिर उसके जहन को इन ख्यालों ने आके रहा जिस काम के लिए वो अपने महल और आरामो साज को छोड़कर निकला था कि खुदा जाने शहजादी यास्मीन के साल में होगी और उसके वालिदैन पर क्या गुजर रही होगी। इसलिए रास्ते में उसे कहीं रुके बगैर मंजिल की जानिब तेजी से सफर करना चाहिए। इन्हीं सोचों में वो नींद की आगोश में पहुंच गया। क्या देखता है कि संगे मरमर की बरादरी के दरमियान एक तख्त है और एक नौजवान लड़की जिसके हुस्न का सानी शायद ही दुनिया में हो, चलती हुई उस पर आकर बैठ जाती है। सर पर ताज और शहजादियों जैसा लिबास पहन रखा है। बारादरी के चारों तरफ सब्जा उगा हुआ है और करीब भी फवारों से फुहार पड़ रही है। फवारों के नीचे जहां पानी जमा हो रहा है, नन्ही नन्ही रंग बिरंगी मछलियां तैर रही हैं और बारादरी के एक चबूतरे पर मोरों का जोड़ा खड़ा है जिस पर सूरज की किरणें पड़ने से अजीब किस्म की चमक पैदा हो रही है। इन तमाम चीजों ने माहौल को बहुत ही दिलकश बना दिया था। वो लड़की से बुलाती है, यूनान के शहजादे इधर आओ, मैं शहजादी यास्मीन हूँ। शहजादा ताहिर ने यह सुनकर दिल में कहा कि वाकई शहजादी यास्मीन तो बहुत खूबसूरत है, जिस तरह दुनिया कहती है उससे बढ़कर पाया है। वो बड़े पुरवकार अंदाज में चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है कि अचानक दो स्याफाम हाथों में नंगी तलवारें लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, शहजादे वहीं रुक जाओ, आगे बढ़ने की कोशिश न करना। शहजादा ताहिर भी अपनी तलवार निकाल लेता है और ये कहता उन पर हमलावर होता है कि तुम कौन हो मुझे रोकने वाले। तलवारों के टकराने से झनाका पैदा होता है और फिर बाकायदा लड़ाई शुरू हो जाती है। शहजादा ताहिर के तलवार चलाने का अंदाज देखकर मालूम होता है कि वो तलवार चलाने में बड़ी महारत रखता है, लेकिन दोनों स्याफाम भी उससे कम न थे और बढ़ बढ़कर हमले कर रहे थे जिनको रोकने के लिए उसे अपनी पूरी कुव्वत सर्फ करना पड़ रही थी। शहजादी उस लड़ाई को देखकर मुस्कुरा रही थी जैसे वो उसकी बहादुरी का इम्तिहान ले रही हो। यक बारगी शहजादे ताहिर ने एक ऐसा हमला किया कि उसके एक मद्दे मुकाबिल का बाजू जख्मी हो गया। अब तो वो दोनों गुस्से में भरे उसकी तरफ झपटे और दोनों ने उसके
पहलुओं से एक ही वक्त में हमला किया, लेकिन उसने बड़ी चुस्ती दिखाई और नीचे बैठ गया, जिससे एक की तलवार दूसरे की गर्दन काटती हुई निकल गई। पहले ने जब अपने ही हाथों अपने साथी को मरते देखा तो उसके गुस्से की इंतहा न रही और वो शहजादे की तरफ भूखे शेर की तरह झपटा और अंधाधुंध हमले करने लगा। शहजादा ताहिर ने इससे फायदा उठाया और उसे थकाने के लिए इधर उधर उछल कूद करता रहा और फिर एक ही बार में उसका सर उसके जिस्म से जुदा कर दिया। शहजादी ये देखकर अपनी जगह से उठी और शहजादे के करीब आकर कहा, शहजादे तुम वाकई बड़े बहादुर हो, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई है। अभी ये बातें हो ही रही थी कि बहुत ही बदसूरत शक्ल की एक औरत कहके लगाती वहां पहुंच गई और शहजादे से कहने लगी, अच्छा तुम भी यहां हो, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। फिर उसने 3 मरतबा ताली बजाई। बारादरी की दूसरी तरफ से देवों की पूरी फौज निकल आई और उन्होंने लपक कर उसे पकड़ लिया। शहजादा कोशिश के बावजूद अपने आप को उनसे ना छुड़ा सका। उसके बाद उस बदसूरत औरत ने एक चमड़े के चाबुक से शहजादी को पीटना शुरू कर दिया। शहजादी की दर्दनाक चीखों से शहजादा ताहिर का दिल बैठने लगा, क्योंकि वह उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। वो जालिम औरत जो शहजादी को मार रही थी शहजादी की तरफ मुड़ी और कहा, शहजादी देख रहे हो, हम इसे इससे भी ज्यादा तकलीफ देंगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे माफ भी किया जा सकता है। शहजादी ने कहा, क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि इस जुल्म की वजह क्या है? वो बोली, हाँ, इसकी सबसे बड़ी वजह शहजादी यास्मीन की खूबसूरती है। शहजादे ने फिर पूछा, उसे इससे निजात कैसे मिल सकती है? वो बोली, अगर तुम इस इरादे से बाज आ जाओ जिसके लिए तुम घर से निकले हो और वापस लौट जाओ। शहजादा ताहिर ने कहा, कहीं तुम देवों की मलका तो नहीं हो जिसके जुल्मों सितम की धूम मची है? उस औरत ने कहा, हाँ तुमने ठीक कहा है, मैं देवों की मलका हूं। तो फिर शहजादे ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा, तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। मैं अपने इरादा को पाया तकमील तक पहुंचाए बगैर हरगिज वापस ना जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान तक क्यों ना देना पड़े। देवों की मलका ने गरज कर कहा, खामोश रहो नादान, तुम्हें अपनी बहादुरी पर इतना ही नाज है तो मैं तुम्हारे तकब्बुर को खाक में मिलाई देती हूं। और जोर जोर से कह के लगाने लगी। उसके साथ ही उसने मुंह में कुछ बुड़बुड़ाकर शहजादी की तरफ हाथ का जो इशारा किया तो वो पत्थर का मुजस्समा बन गई। शहजादा ताहिर को यह देखकर बहुत ही दुख हुआ कि वो उस वक्त जिद ना दिखाता तो बेचारी मासूम शहजादी पर यह अफ्ताद तो न पड़ती। उसे चक्कर से आने लगे और गिर पड़ा। आंख जो खुली तो वो इसी कमरे में था जिसमें परियां उसे बंद कर गई थी। वो हैरान था कि कितना भयानक ख्वाब देखा है। उसने कहा, शहजादी बदसूरत मलका के जुल्म का निशाना बन रही होगी। उसी वक्त दरवाजे के खुलने की आवाज आई और रात वाली परियां अंदर दाखिल हुई। कहा, चलो शहजादी, मलका तुम्हारा नाश्ते पर इंतजार कर रही है। शहजादा उनके साथ हो लिया। वो उसे मुख्तलिफ कमरों और बरामदों से घुमाती हुई एक बहुत ज्यादा सजे हुए कमरे में ले गई। हर तरफ फानूस जगमग कर रहे थे और खाने पीने की चीजें बड़े खूबसूरत और चमकदार बर्तनों में चुनी गई थी। जब वो कमरे में पहुंचा तो सामने परियों की मलका बैठी हुई थी। उसने कहा, आओ शहजादे, नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार हो रहा है। शहजादे ने उसका शुक्रिया अदा किया और मजीद कुछ कहना चाहता था कि मलका ने कहा, पहले नाश्ता और बातें बाद में होंगी। उसने खामोशी से नाश्ता किया। मलका उसके फारिग होने की मुंतजिर थी। बोली, सुना है तुम हमारा इलाज करोगे? शहजादा ताहिर ने जवाब दिया, हाँ, घर से रवाना होते वक्त हमारे खानदानी हकीम ने मुझे एक मरहम दिया था कि रास्ते में शायद मुझे जरूरत पड़े। ये मरहम उसने कई मुख्तलिफ जड़ी बूटियों को मिलाकर तैयार किया है। पुराने से पुराना जख्म और फोड़ा चंद लम्हों में ठीक हो जाता है। फिर शहजादे ने जेब से डिबिया निकाली और उसमें से थोड़ा सा मरहम निकालकर मलिका को दिया कि पिंडली को अच्छी तरह धोकर उस पर लगा दे। मलिका ने वो मरहम लेकर एक परी के जरिए अपने फोड़े पर लगाया तो हैरत अंगेज तौर पर वो फोड़ा पलक झपकने में खत्म हो गया। ऐसा मालूम होता था जैसे उस पिंडली पर कभी कोई फोड़ा था ही नहीं। मलिका की तकलीफ जाती रही और दूसरी तमाम परियां बहुत खुश हुई और शहजादे से कहा, शहजादे, गुज़श्ता शाम के रवैया पर हमें पशेमानी है, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारा किस जुबान से शुक्रिया अदा करें कि तुमने हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत से निजात दिलाई है। शहजादा ताहिर ने कहा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, खुदा ने मेहरबानी की है। उसके बाद उसने अपने सफर पर जाने की इजाजत चाही तो मलका ने कहा, शहजादे, तुम अजीम इंसान हो, तुमने हमारी सख्त कलामी को महसूस नहीं किया। हम तुम्हें अभी नहीं जाने देंगे, चंद रोज तक तुम्हें हमारा मेहमान रहना पड़ेगा। शहजादा ताहिर ने कहा, मलका, मेरा ज्यादा देर तक यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। खुदा जाने शहजादी यास्मीन के साल में होगी, इसलिए मुझे अभी रवाना हो जाना चाहिए। दूसरी परियां कहने लगी, शहजादे, अगर तुम ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहते तो हम मजबूर नहीं करते, लेकिन आज शाम को मलिका की सेहतयाबी का जश्न मनाया जाएगा, इसमें तुम्हारा शरीक होना जरूरी है। उनके बहुत ज्यादा इसरार पर शहजादा ताहिर ने वहां शाम तक रुकना मंजूर कर लिया। शाम से पहले पहले सारे बाग को खूब सजाया गया और जश्न का मुकम्मल इंतजाम किया गया। हर तरफ खुशी का नकारा बज रहा था। परियां नाचती और खुशी के गीत गाती इधर उधर आ जा रही थी। शाम के वक्त शहजादे को एक खूबसूरत तख्त पर बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ बिठाया गया। इस मौका पर मलका ने खुद रक्स किया, जिसे देखकर शहजादे को कहना पड़ा कि वो वाकई रक्स में खूब महारत रखती है। अचानक हर तरफ चीखों पुकार शुरू हो गई। मलका ने भी नाचना बंद कर दिया और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। परियां जिधर मुंह जिसका उठता था भाग रही थी। शहजादा ताहिर ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि आखिर क्या माजरा है। उसने शेर की दहाड़ सुनी, आवाज की तरफ देखा तो एक स्याह रंग के कवि हैकल शेर को आते हुए पाया,
جو اپنی پوری آواز سے دھاڑ رہا تھا۔ اسے سب بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ تمام چیخو پکار اسی وجہ سے ہے۔ شیر چھلانگ لگا کر ایک پری پر جھپٹا، باقی پریاں سہم کر کھڑی ہو گئیں۔ شیر چاہتا تھا کہ اپنے شکار کی گردن پر اپنے دانت گاڑ دے کہ شہزادہ طاہر نے جلدی سے دوڑ کر شیر کی کمر سے پکڑ کر اسے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ شیر پری کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ شہزادے پر گھبراہٹ نام کو نہ تھی، وہ بغیر کسی خوف کے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ شیر نے ایک بار سہمی ہوئی پریوں کے ہجوم کی طرف دیکھا اور پھر اپنی پوری قوت سے دھاڑا، جس سے سارا باغ گونج اٹھا۔ زمین ہلتی محسوس ہوتی تھی۔ پریاں خوف کے مارے اور زیادہ ڈر گئیں۔ ان کے چہروں سے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی۔ اب شیر کی نظریں شہزادہ طاہر پر جمی ہوئی تھی۔ شہزادہ بھی پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا اور اس کے کسی اچانک حملے کے لیے بالکل تیار تھا۔ شیر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ شہزادہ طاہر بدھ کی طرح اپنی جگہ پر کھڑا تھا، لیکن جب شیر اور اس کا درمیانی فاصلہ بہت کم ہو گیا تو وہ قدرے آگے کی طرف جھک گیا، جیسے شیر سے مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو۔ شیر ایک دم رک گیا۔ شاید اسے حیرت ہو رہی تھی کہ آج پہلی دفعہ اس نے اپنے شکار کو اتنا پرسکون اور لڑنے پر آمادہ پایا تھا۔ شیر کی گردن کے بال کھڑے ہو گئے اور اس کے جسم میں تناؤ سا پیدا ہو گیا۔ شہزادہ چوکنا ہو گیا۔ وہ اس خونخوار درندے کی خصلت سے اچھی طرح واقفیت رکھتا تھا اور جانتا تھا کہ شیر کی کس حرکت کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود ایک پالتو شیر کا مالک تھا، جو اس کے والد نے اسے اس وقت لا کر دیا تھا جب وہ چند دنوں کا بچہ تھا، اور جسے اس نے بڑی محبت سے پالا تھا۔ اس لیے اس نے سمجھ لیا کہ اب اس کا دشمن اس پر چھلانگ لگائے گا، اور وہی ہوا جو شہزادے نے سوچا تھا۔ شیر نے دھاڑتے ہوئے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور برق رفتاری سے شہزادے کے اوپر آیا۔ شیر جیسے درندے کی پھرتی کا انسانی آنکھ تعقب نہیں کر سکتی۔ اگر شہزادہ بجلی کسی تیزی کے ساتھ اپنی جگہ سے اچھل کر دوسری طرف نہ ہٹ گیا ہوتا تو شیر کے نیچے دب جانا یقینی تھا۔ شیر غراتا ہوا پلٹا۔ زمین ایک بار پھر اس کی گرجدار آواز سے ہلنے لگی اور اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چنگاریاں نکل رہی ہوں۔ شہزادہ طاہر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً حواس کھو بیٹھتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی پوری کوشش کی، ورنہ گھبراہٹ سے سوائے نقصان کے اور کچھ حاصل نہ تھا۔ شیر نے اپنا پہلا وار خالی جاتے دیکھا تو غصے میں بھر کر ایک بار پھر چھلانگ لگائی۔ اس بار بھی شہزادے نے اپنے آپ کو شیر سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بچایا۔ شہزادہ دراصل یہ چاہتا تھا کہ شیر تھک جائے، کیونکہ اس کے بغیر تو ایک انسان کا اس خونخوار درندے سے مقابلہ مشکل تو کیا ناممکن ہے۔ اس لیے اس نے شیر کے کئی وار اپنی بے پناہ پھرتی اور حاضر دماغی سے ضائع کیے۔ اب جو اس نے وار خالی دیا تو شیر بڑی تیزی سے نہایت غصے کی حالت میں شہزادے کی طرف مڑا۔ اس سے پہلے کہ شیر حملہ کرتا، شہزادہ طاہر نے نیچے پڑے ہوئے پتھروں میں سے جو روشوں کے دونوں طرف خوبصورتی کے لیے رکھے گئے تھے، ایک نوکیلا پتھر اٹھا کر اس پر کھینچ مارا۔ نشانہ اس کی آنکھ کا لیا تھا، لیکن وہ اس کی آنکھ کے بجائے پیشانی پر لگا۔ پتھر کی تیز نوک گوشت میں گھس گئی اور سرخ سرخ خون ابل پڑا۔ شیر نے دھاڑتے ہوئے شہزادے پر چھلانگ لگائی اور اس نے شیر کا یہ وار بھی چابک دستی سے خالی دیا۔ یہ مقابلہ 15 منٹ تک جاری رہا۔ شہزادے کا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ اب اس کا اندازہ تھا کہ شیر تھک گیا ہے، اس لیے اس دفعہ جو شیر چھلانگ لگانے کے لیے مڑا، شہزادہ پوری طرح حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ اچھل کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور شیر کی گردن اپنے بازوؤں میں لینا چاہی، لیکن دوسرے ہی لمحے شیر نے اپنے جسم کو اتنی زور سے جھٹکا کہ شہزادہ اچھل کر اس سے بہت دور جا گرا۔ اس کا سر پتھر کے اس فوارے سے جا ٹکرایا جو باغ میں بنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تارے سے ناچنے لگے۔ شہزادہ طاہر لڑکھڑاتا ہوا اٹھا۔ اس سے اندازے کی غلطی ہوئی تھی۔ شیر ابھی بالکل نہیں تھکا تھا، بلکہ اس میں اب پہلے سے بھی زیادہ درندگی آ گئی تھی۔ ایک بار پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ شیر چھلانگ لگاتا اور شہزادہ بڑی پھرتی کے ساتھ اس کا وار خالی دیتا۔ 10-15 منٹ اور گزر گئے۔ شیر نے جست لگائی اور شہزادے نے پہلے والا حربہ استعمال کیا۔ وار خالی دیکھ کر وہ اس کی پیٹھ پر کود گیا۔ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس نے اپنی دونوں ٹانگیں شیر کے جسم کے گرد کس لیں۔ شیر نے پھر اپنے جسم کو جھٹکا دیا، لیکن اس بار اس کے جسم میں پہلی سی قوت نہیں تھی۔ شہزادے کو اپنا پورا زور لگانا پڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے دائیں بازو سے شیر کی گردن جکڑ لی۔ شیر دھاڑتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا۔ شاید وہ اپنے دشمن کو کسی نئے طریقے سے اپنے جسم سے علیحدہ کرنا چاہتا تھا۔ شہزادے نے اپنے بازو اور ٹانگوں کی گرفت اور مضبوط کر لی اور پھر اچانک اپنا بایاں ہاتھ اس کے جبڑوں میں ٹھونس کر حلق تک پہنچا دیا۔ یہ ایک خطرناک کام تھا۔ شیر اپنے نوکیلے اور تیز دانتوں سے اس کا بازو چبا ڈالتا یا کاٹ کر پھینک دیتا، لیکن شہزادہ ایک جرأت مند اور دلیر انسان تھا۔ وہ اپنے داہنے بازو کی پوری قوت سے شیر کی گردن دبا رہا تھا اور بایاں ہاتھ بدستور شیر کے حلق میں تھا، جس سے اس کا سانس رک رہا تھا اور اس کی دھاڑیں بھی بند ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شیر کے منہ میں اپنا بازو دیکھ کر بھی شہزادہ بے خوف تھا۔ شیر کی غراہٹ اب بھی جاری تھی اور اس کا جسم پوری طرح ہل رہا تھا۔ شہزادہ طاہر پسینے میں نہا گیا۔ وہ چند منٹ تک اس کی گردن کو جھٹکے دے کر دباتا رہا۔ آہستہ آہستہ شیر کی غراہٹ کم ہوتی چلی گئی اور جسم کی حرکت میں بھی پہلے کسی تیزی باقی نہ رہی تھی۔ پھر وہ بالکل ساکت ہو گیا۔ شہزادے نے ایک بار پھر اس کی گردن کو زور کا جھٹکا دیا، پھر اسے چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔
सर की चोट से खून बहकर नीचे गिर रहा था और उसके अलावा उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे और जिस्म के कई मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटें और जख्म भी आए थे। परियों ने जब शेर को मरे हुए देखा तो बेहद खुशी से शहजादे की तरफ बढ़ी। शहजादा ताहिर पर जबरदस्त मुकाबले और बहुत ज्यादा खून निकल जाने की वजह से गशी तारी होने लगी। उसकी आंखें बंद होती गईं और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ा। परियों की मलका ने हुक्म दिया कि शहजादे को उठाकर तख्त पर लिटाया जाए और उसके होश में लाने की तरकीबें होने लगी। काफी देर के बाद जब उसे होश आया तो परियों की मलका ने उसका शुक्रिया अदा करने के बाद बताया कि ये खौफनाक शेर पहले भी हम पर कई बार हमले कर चुका था, जिसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी थी। अब हम बगैर किसी डर के इधर उधर आ जा सकेंगे। शहजादा ताहिर ने कहा, अच्छा अब मुझे चलना चाहिए। परियों की मलका ने उसे बहुत रोका कि वो जख्मी है, इसलिए उसका इस वक्त जाना मुनासिब नहीं, लेकिन वो जाने पर बाजिद था, जिस पर मलिका को मजबूरन इजाजत देना पड़ी और तकरीबन 2 इंच लंबा घोड़े का एक मुजस्समा दिया जो सुनहरी था। मलिका ने कहा, शहजादे ये कैसा मुजस्समा है जिसके पास होगा उस पर किसी किस्म के जादू या तिलिस्म का असर ना होगा। शहजादे ने शुक्रिया अदा किया और वो संभाल कर अपने पास रख लिया। फिर मलिका ने एक परी से मुखातिब होकर कहा कि वो उसे देवों के मुल्क की सरहद तक छोड़ाए। परी उसे साथ लेकर कुछ देर चलती रही, फिर अपने दाएं हाथ में पड़ी हुई छड़ी से जिस पर एक मोर बना हुआ था आसमान की तरफ इशारा किया। उसी वक्त आसमान से 2 बड़े बड़े परिंदे न जाने कहां से आ गए, उतर आए और ये दोनों परिंदे बिल्कुल स्याह रंग के थे। परी ने शहजादे से बड़े एहतराम के साथ कहा, शहजादे इनमें से एक परिंदे पर बैठ जाओ, और उसके बाद दूसरे पर वो खुद बैठ गई। वो परिंदे आहिस्ता आहिस्ता हवा में बुलंद होने लगे। उनके उड़ने का अंदाज अजीब था, वो पर हिलाए बगैर उड़ रहे थे जैसे तैर रहे हों। कुछ देर बाद वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए कि नीचे बनी हुई इमारतें, गुड़ियों के मकान नजर आते थे। शहजादे ने परी से पूछा, हमें कितनी देर सफर करना होगा? परी ने उसे बताया कि आज की रात और कल का पूरा दिन हमें सफर पर रहना पड़ेगा। शहजादा ताहिर को बड़ी हैरत हुई कि परिंदे खासी रफ्तार से मंजिल की जानिब जा रहे थे। शहजादे ने दोबारा परी से कहा, मेरे इल्म में तो देवों का मुल्क इतनी दूर नहीं है। परी ने कहा, शहजादे वैसे तो हम चंद घंटों में अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं, लेकिन रास्ते में आग का एक दरिया पड़ता है जहां से गुजरना हमारे लिए खतरनाक है, और उन परिंदों के जिन पर हम सवार हैं जल जाने का खतरा है, इसलिए हमें एक बहुत लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा। वो दरियाओं, पहाड़ों और मैदानों पर से गुजरते हुए रात के मतवातर सफर के बाद सुबह अभी सूरज मशरिक से निकला ही था कि एक ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां हर तरफ धुआं ही धुआं था। खुशगवार मौसम होने के बावजूद यहां सर्दी इंतहा को थी। जमीन स्याह थी और चारों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें खड़ी थी जिन पर बर्फ जमी हुई थी। उनके परिंदे यहां पहुंचकर हवा में खड़े हो गए। शहजादा ताहिर को बड़ी परेशानी हुई कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। परिंदे नीचे भी नहीं उतर रहे थे। वो बहुत सर्दी की वजह से कांपने लगा। उसने परी से पूछा कि ये क्या मामला है और आगे कैसे जाएंगे। उस परी ने बताया, शहजादे यहाँ काहिरा जादूगरनी की हुकूमत है और वो इन्हीं स्याह चट्टानों में से किसी एक में रहती है। ये सर्दी उसी के जादू का करिश्मा है। शहजादा ताहिर ने कहा, अब क्या किया जाए? परी ने कहा, शहजादे वो मुजस्समा जो मलका ने तुम्हें दिया था हाथ में पकड़कर 7 मरतबा हाथ को लहराओ। उसने वैसा ही किया तो उससे बड़ी हैरत हुई कि सर्दी की शिद्दत तो क्या, सर्दी का नाम भी न रहा था और परिंदों ने आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू कर दिया। अभी वो जमीन से कई फीट की बुलंदी पर थे कि परिंदों की गर्दनें एक तरफ ढलक गईं और वो नीचे आ रहे। जमीन पथरीली और सख्त थी जिससे उन्हें काफी चोटें आईं। उसके बावजूद शहजादे को परिंदों के मर जाने का बड़ा अफसोस हुआ। उसने परी से मुखातिब होकर कहा, अब सफर किस तरह जारी रखा जा सकता है? परी बोली, इन पहाड़ों को पैदल ही चलकर अबूर करना होगा और हमारा यहाँ एक लम्हा भी रुकना खतरनाक है। अगर काहिरा जादूगरनी पहुंच गई तो बहुत सी दुश्वारियां पैदा होने का डर है। कई घंटों के बाद वो उन ऊंचे नीचे और दुश्वार गुजार पहाड़ों की दूसरी तरफ पहुंच गए। मुसलसल चलने की वजह से शहजादा ताहिर का थकन से बुरा हाल था। उसका सांस फूल रहा था। अब उसके लिए चलना दुबार था। उसके बरक्स परी बड़े इत्मीनान में थी। वो कहने लगी, अब हम महफूज हैं और अपना सफर फिर तेजी से जारी रख सकते हैं। इसके साथ ही उसने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को फजा में लहराया तो 2 बहुत ही सेहतमंद और खूबसूरत घोड़े नमदार हुए और वो दोनों उन पर सवार हो गए। घोड़ों ने सर पर दौड़ना शुरू किया। ऐसा मालूम होता था जैसे वो उड़ रहे हों। एक दिन और एक रात घोड़े की पीठ पर गुजारा और सुबह के वक्त वो एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच गए और सामने फसील का एक बहुत बड़ा फाटक नजर आ रहा था। परी ने फाटक की तरफ इशारा करके कहा, वो देखो शहजादे, यही फाटक देवों के मुल्क में दाखिल होने का रास्ता है। खुदा तुम्हें कामयाब करे। इसके साथ ही वो घोड़ों समेत रवाना हो गई। शहजादा ताहिर आगे बढ़ा। उसने दूरी से देख लिया कि 2 खौफनाक देव फाटक पर बड़ी चुस्ती से पहरा दे रहे हैं। वो बड़ी एहतियात से आगे बढ़ा कि देव से देख न ले। इसके बावजूद देवों की नजर उस पर पड़ गई। वो दोनों तेजी से उसकी तरफ आए और गरज कर कहा, आदमजाद तुम यहां क्या लेने आए हो? और फिर दौड़कर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन शहजादा ताहिर दौड़कर उनसे अलहदा जा खड़ा हुआ और उसके साथ ही बड़ी फुर्ती से न्याम से तलवार खींच ली। देव तलवारें लेकर उसके मुकाबले में आ गए। शहजादा ताहिर कुछ देर तो उनसे लड़ता रहा, लेकिन जब बहुत थक गया तो उसने सोचा इस तरह तो उन्हें जेर करना नामुमकिन है, कोई और हरबा इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही उसने मैदान में भागना शुरू कर दिया। देव भी उसकी तरफ लपके।
उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। देव भी गुस्से से भरे बहुत तेजी में उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे। जब उनका और शहजादा ताहिर का फासला बहुत कम रह गया और करीब था कि वो उसे पकड़ लेते, शहजादा एकदम बैठ गया। दोनों देव उसके ऊपर से होते हुए दूर जा गिरे। शहजादे ने उस मौका से फायदा उठाया। उसकी तरकीब कामयाब हुई थी। तलवार के एक जोरदार वार से उसने गिरे हुए देव में से एक का सर तन से जुदा कर दिया। दूसरा देव गुस्से में पेचोताप खाता हुआ उठा और अपनी तलवार से अपने साथी का बदला लेने के लिए ऐसा वार किया कि अगर शहजादा फुर्ती से एक तरफ को हट ना गया होता तो उसकी गर्दन का उतर जाना यकीनी था। अब उसने भी देव पर हमला किया। देव ने हमला अपनी तलवार पर रोका तो दोनों तरफ से बेदर पे वार होने लगे। शहजादा बड़ी तेजी से देव पर इधर उधर हमले कर रहा था। देव उसके एक भरपूर वार को रोकने के लिए दाएं तरफ जो झुका, अपने भारी भरकम जिस्म की वजह से अपने आप को संभाल ना सका था। शहजादे ने यह लम्हा जाया किए बगैर उसके गिरने से पहले उसका काम तमाम कर दिया। फिर दोनों देवों की लाशों को घसीटकर फाटक के एक कोने में रख दिया और बगैर किसी खौफ के फाटक खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अभी वो थोड़ा सा ही फासला तय कर पाया था कि अकब से ऐन उसी वक्त एक देव जो उसकी लाइलमी में उस पर हमला करना चाहता था, शहबाज ने उस देव को कत्ल करके शहजादा ताहिर की जान बचा ली थी। शहजादे ने अपने तमाम वाकयात सुनाने के बाद कि वो किस तरह यहां तक पहुंचा, एक बार फिर शहबाज का शुक्रिया अदा किया। शहबाज और शहजादा ताहिर आगे बढ़ने के लिए सोच रहे थे और एक दूसरे से मशवरा कर रहे थे कि उन्होंने दूर से देवों की एक पूरी फौज को आते देखा। दोनों भागकर करीब के एक दरख्त के पीछे छुप गए। देव उनके करीब से ही होकर गुजरे, लेकिन उनकी नजर उन दोनों पर न पड़ी। जब देव बहुत दूर निकल गए तब दोनों दरख्त के अकब से बाहर निकल आए और मंजिल की तरफ रवाना हुए। 2-3 मील का फासला तय करने के बाद उनके रास्ते में एक नहर आई। नहर में पानी के बजाय खून बहता हुआ नजर आता था और उन्होंने कई इंसानी खोपड़ियों को भी पानी के बहाव के साथ देखा। शहबाज ने कहा, मालूम होता है ये उन्हीं बदकिस्मत इंसानों की खोपड़ियां हैं जो हमसे पहले यहां आए हैं। शहजादा ताहिर ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। उधर देवों की मलिका को भी इसका इल्म हो गया कि 2 नौजवान पहरेदारों को कत्ल करके उसके मुल्क में दाखिल हो गए हैं, इसलिए उसने मुल्क के सबसे ताकतवर देव को उनकी गिरफ्तारी के लिए भेजा। ये देव जिसे अपनी ताकत पर बड़ा नाज था, हवा और आंधी की तरह शहबाज और शहजादा ताहिर तक पहुंच गया। उन दोनों ने उसे दूर से ही आते हुए देख लिया। शहबाज ने कहा, क्यों शहजादे, इसके साथ थोड़ा सा मजाक न कर लिया जाए। शहजादे ने हंसते हुए कहा, खूब रहेगी। देव जब उनके करीब आ गया तो शहबाज ने बुजुर्ग की दी हुई चादर अपने ऊपर ओढ़ ली और देव की नजरों से गायब हो गया। देव ने हैरत से इधर उधर देखा, फिर शहजादा ताहिर की तरफ बढ़ा। शहजादे ने तलवार निकालकर उस पर हमला कर दिया। देव ने भी चाहा कि उस पर हमला करे। शहबाज ने उसकी टांग खींच ली और वो धड़ाम से नीचे आ रहा। उसने मुड़कर देखा कि उसकी टांग खींचने वाला कौन है, तो शहबाज ने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर जड़ दिया। देव गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। वो फुर्ती से खड़ा होकर फिर शहजादे पर हमला करना चाहता था कि शहबाज ने उसकी फिर टांग खींच ली। वो फिर जमीन पर आ रहा। शहजादा ताहिर वक्त जाया नहीं करना चाहता था कि न जाने शहजादी यास्मीन किस साल में होगी, इसलिए देव के गिरते ही तलवार के एक ही वार से उसका सर उसके तन से जुदा कर दिया। ये सब कुछ देव की मलका अपने अजायब घर में जहां नुमा पर देख रही थी। उसने जब मुल्क के सबसे ताकतवर देव को बगैर किसी बहादुरी के मुजाहरा किए मरते देखा तो उसे उन दोनों पर बड़ा गुस्सा आया और वो सरापा गुस्सा बनकर अपने अजायब घर से बाहर आई और अपने कई और देवों को उनके लिए भेजा। शहबाज चादर उतारकर शहजादे के पास आया और दोनों हंसते हुए मलका के महल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में जब भी जरूरत पड़ी वो चादर के जरिए सबकी नजरों से ओझल महल के दाखिली दरवाजे तक पहुंच गए। यहां बहुत से देव बड़ी होशियारी से पहरा दे रहे थे। चूंकि दोनों ने बुजुर्ग की दी हुई चादर ओढ़ रखी थी, इसलिए किसी डर के बगैर वो आगे बढ़ते ही गए। शहजादा ताहिर ने अंदर जाते हुए शरारत के तौर पर एक देव का कान खींच लिया और एक थप्पड़ भी उसके मुंह पर जमा दिया। देव ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे अपने साथी देवों के अलावा कोई और नजर न आया। वो समझा उन्हीं में से किसी ने उसे थप्पड़ मारा है, इसलिए वो अपने साथ खड़े हुए देव से लड़ने लगा। शहजादा ताहिर और शहबाज उन्हें लड़ता हुआ छोड़कर मुस्कुराते हुए महल में दाखिल हो गए। उन्होंने यहां हर एक को चाको चबान पाया और ऐसा मालूम होता था कि सब उन दोनों की तलाश में हैं। शहजादे ने शहबाज से कहा, अब हमें बहुत ही एहतियात बरतना पड़ेगी, इसलिए वो अपना हर कदम बड़े सोच विचार के बाद आगे बढ़ा रहे थे। यह महल क्या था, पूरा एक शहर था। सैकड़ों की तादाद में कमरे और बरामदे बने हुए थे और उनमें जा बजा पत्थर के इंसानी बुत रखे हुए थे। वो दोनों शहजादी यास्मीन और शहजादी मारूफ की तलाश के लिए हर कमरे में चकराते फिर रहे थे कि एक कमरे के आगे एक जंगला बना हुआ देखा जहां कई देव पहरा दे रहे थे। उन्होंने जंगले के अंदर झांका तो वह बेशुमार लड़कियों को कैद पाया। वो वहीं रुक गए कि दोनों शहजादियां जरूर इस कमरे में कैद होंगी। अचानक वहां देवों की मलका आ गई। शहजादा ताहिर और शहबाज ने देखा कि वो निहायत बदसूरत और मकरूह शक्ल की है। आधा चेहरा उसका बिल्कुल स्याह हो चुका है। उसने सर पर ताज रखा हुआ है और बहुत ही नफीस कपड़े पहन रखे थे। आते ही उसने देवों को जंगले वाले कमरे का दरवाजा खोलने के लिए कहा। दरवाजा खुलने के बाद मलका कमरे में दाखिल हुई तो वो दोनों भी कमरे में दाखिल हो गए। चूंकि उन्होंने चादर ओढ़ रखी थी, इसलिए उनको अंदर आते हुए कोई न देख सका। मलिका को देखकर अंदर बैठी हुई लड़कियां सहम गईं और उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। मलिका ने अपनी करख्त आवाज में एक खूबसूरत लड़की को जिसके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी अपने पास बुलाया और साथ लेकर चली गई। देव ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया।
शहजादा ताहिर और शहबाज ने बाहर जाने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो उन लड़कियों से मुकम्मल हालात मालूम करना चाहते थे। जब कुछ देर गुजर गई तो उन दोनों ने अपने ऊपर से चादर उतार दी। लड़कियां उन्हें देखकर हैरतज़दा रह गई और अजीब नजरों से देखने लगी कि ये कहां से आ गए हैं। शहजादा ताहिर ने धीमी आवाज में उनसे कहा, घबराने की जरूरत नहीं, हम आप लोगों को बदसूरत मलका की कैद से रिहाई दिलाने के लिए आए हैं। फिर शहजादा वहां की सबसे खूबसूरत लड़की के पास आया और उससे मुखातिब होकर बोला, क्या तुम रोम की शहजादी यास्मीन तो नहीं हो? उसका अंदाजा सही था। वो लड़की बोली, हाँ मैं रोम की शहजादी हूँ। कैद में रहने और वालिदैन से जुदाई की वजह से शहजादी बरसों की बीमार नजर आती थी और उसकी शक्ल नहीं पहचानी जा रही थी। शहजादी यास्मीन ने शहजादा ताहिर के करीब आते हुए कहा, शहजादे मुझे यकीन था कि तुम मेरी रिहाई के लिए यहां जरूर आओगे। और फिर शहबाज की तरफ देखकर कहा, यह नौजवान कौन है? शहजादा ताहिर ने कहा, यह बहादुर नौजवान इस्फहान से आया है और इसका नाम शहबाज है। बाकी लड़कियां भी उठकर उनके गिर्द जमा हो गईं। शहबाज ने पूछा, तुम में से इस्फहान की शहजादी मारूफ कौन है? शहजादी यास्मीन ने पुरनम आंखों से बताया कि अभी देव की मलका जिस लड़की को ले गई है वही इस्फहान की शहजादी मारूफ थी और उसने अपना तमाम वक्त रो रो कर गुजार दिया है। शहबाज ने पूछा, मलका शहजादी को कहां ले गई है? शहजादी यास्मीन ने बताया कि जब किसी लड़की को इस कैद से ले जाया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था। इसके बाद उसको पत्थर का बुत बनाकर तहखाने में रखवा दिया जाता है। इससे पहले रात को एक मैदान में तमाम देव जमा होते हैं और कैदियों को भी वहां ले जाया जाता है। सारी रात नाच गाना होता है और इस तरह मलका अपनी खूबसूरती वापस लाने के लिए एक और जान पर खेल जाती है। शहजादा ताहिर और शहबाज को रात का इंतजार वहीं करना पड़ा। अलावा अजीम दरवाजा भी बाहर से मुकफ्फल था, उसे ताला लगा था, इसलिए उन्होंने ये वक्त भी तमाम लड़कियों को इत्मीनान दिलाने और उनके हालात पूछने में गुजारा। जब शाम के वक्त हर तरफ अंधेरा छाने लगा तो दो देव दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। इससे पहले शहजादा ताहिर और शहबाज ने चादर अपने ऊपर ओढ़ ली ताकि वो दोनों देवों की नजरों से ओझल रहें। अगर वो चाहते तो उन दोनों देवों को मौत के घाट उतार कर उन तमाम लड़कियों को आजाद करवा सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि पहले बदसूरत मलका को उसके जुल्मों की सजा दी जाए और उसके बाद सबको आजाद कराया जाए। देव ने तमाम लड़कियों को चलने के लिए कहा और इससे पहले भी ये कह दिया कि अगर किसी ने इधर उधर भागने की कोशिश की तो उसे जान से मार दिया जाएगा। शहबाज और शहजादा ताहिर भी सबकी नजरों से छुपे उनके पीछे हो लिए। मुख्तलिफ कमरों और बरामदों से होते हुए एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच गए जहां एक शानदार जश्न का इंतजाम किया गया था और हर तरफ रोशनी के लिए दिए जलमिला रहे थे। चारों तरफ देव अदब से खड़े थे। अचानक ढोल पीटने की आवाज फजा में गूंजी और सबकी नजरें उस तरफ को उठ गईं जिधर एक बहुत ही खूबसूरत तख्त रखा था। कई देव बदसूरत मलका को एक डोली में उठाए हुए तख्त के करीब ले आए। बदसूरत मलका तख्त पर आकर बैठ गई और ढोलों की आवाज बंद हो गई। सब देव कुछ देर अपनी गर्दनें झुकाए खड़े रहे। मलका ने बड़ा जर्क बर्क लिबास पहन रखा था। कैदी लड़कियों को पहले ही तख्त की दाएं जानिब कतार में खड़ा कर दिया गया। मलका ने ताली बजाई और सब सीधे खड़े हो गए। इसके साथ ही दो देव गए और शहजादी मारूफ को लेकर आ गए जिसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। शहजादा ताहिर और शहबाज सबकी नजरों से ओझल एक तरफ खड़ी सब कुछ देख रहे थे और बदसूरत मलका को जान से मार देने के लिए तदबीरें सोच रहे थे। बदसूरत मलका के इशारे पर ढोल दोबारा बजने लगे और सब देवों ने दोबारा अपने सर झुका लिए। शहजादी मारूफ को मैदान के दरमियान एक चबूतरे पर सतून से बांध दिया गया और मलिका अपने हाथ में एक कोड़ा लिए तख्त से उतरकर मारूफ की तरफ आई और कोड़े से उसे मारने लगी। साथ ही कहके लगाते हुए कह रही थी, इस माह चांद की चौदहवीं को मैं तुम सब के खून से अपना चेहरा धोकर बदसूरती से हमेशा के लिए निजात पाऊंगी और मेरा रूपो निखार मुझे वापस मिल जाएगा। मैंने दुनिया की खूबसूरत तरीन 1000 लड़कियां कब्जे में कर ली हैं। इसके साथ वो फिर कहके लगाने लगी। शहजादी मारूफ की चीखें चारों तरफ गूंज रही थी। सामने खड़ी हुई तमाम लड़कियों का यह नजारा देखकर बुरा हाल था। यूं लगता था अभी गिर पड़ेंगी। शहबाज से यह नहीं देखा जा रहा था। उसने कई बार चाहा कि वो आगे बढ़कर बदसूरत मलका को शहजादी मारूफ पर जुल्म करने से रोके, लेकिन हर बार शहजादा ताहिर ने उसे रोक दिया कि इस तरह उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी और शहजादी को भी वो आजाद नहीं करवा सकेगा। उसका यह कदम मसलियत के खिलाफ है। बदसूरत मलका ने कोड़ों से शहजादी मारूफ को इतना मारा कि उसके कपड़े जगह जगह से फट गए और उसके जिस्म पर जहां जहां भी कोड़ा पड़ा था खून टपकने लगा। बदसूरत मलका ने उसी वक्त एक देव से प्याला मंगवाया और शहजादी के बदन से निकलने वाले खून को उसमें जमा करने लगी। जब प्याला निस्फ के करीब भर गया तो वो चबूतरे से नीचे उतर आई और मुंह में कुछ बड़बड़ाकर शहजादी की तरफ फूंक जो मारी तो वो पत्थर का मुजस्समा बन गई। ये मंजर देखकर कैदी लड़कियों की चीखें निकल गई। शहबाज भी ये देखकर बर्दाश्त न कर सका और उसने अपने ऊपर से चादर उतारकर दूर फेंक दी। फिर गुस्से में तलवार निकालकर मलका की तरफ झपटा। चादर उतर जाने की वजह से शहजादा ताहिर भी जाहिर हो गया और वो भी अपनी हिफाजत और शहबाज की मदद के लिए तलवार लेकर मुस्तैद हो गया। कई देव शहबाज को पकड़ने के लिए लपके, लेकिन न जाने उसमें कहां की कुव्वत आ गई थी कि वो किसी को खातिर में लाए बगैर मलका की जानिब बढ़ रहा था। उसके हाथों कई देव लुकमाए अजल बन गए। इस तरह शहजादा ताहिर भी अपनी तलवार के जौहर दिखा रहा था। शहजादी यास्मीन गमज़दा होने के बावजूद उसे तलवार चलाते हुए बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी, लेकिन कब तक देवों की बहुत ज्यादा तादाद और ताकत के सामने उन दोनों की पेश न गई और दोनों को घेरे में ले लिया गया। फिर पकड़कर बदसूरत मलका के सामने लाया गया। मलका ने बड़ी हिकारत से दोनों की तरफ देखा और अपनी करख्त आवाज में बोली, तुम दोनों ने मेरे मुल्क के नामवर देवों को मौत के घाट उतार दिया है।
مجھے کافی دنوں سے تم لوگوں کی تلاش تھی. اب تم دونوں بھی موت سے نہیں بچ سکتے. لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایک سبق دینا چاہتی ہوں. ملکہ نے دانت پیستے ہوئے کوڑے کو ہوا میں لہرایا. اس سے پہلے کہ وہ کوڑے کو ان میں سے کسی پر آزماتی، شہزادہ طاہر نے کہا، تمہارے ظلم کے بھی باقی چند ہی روز ہیں. خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. تم جس بدصورت چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے دوسروں کی زندگیوں سے کھیل رہی ہو، وہی تمہاری ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گا. ملکہ نے گرج کر کہا، خاموش رہو گستاخ لڑکے. تمام دیو بھی انہیں خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے. شہزادہ طاہر کے خاموش ہوتے ہی شہباز بولا، ملکہ، اس خوبصورت چہرے کا کیا کرنا جس کے پیچھے ایک مکروہ، گندا ذہن اور ظالم دل چھپا ہوا ہو؟ اپنے کیے کی توبہ کرو، تمہارا آخری وقت آن پہنچا ہے. ملکہ بہت زیادہ غصے کے عالم میں کوڑا لے کر شہباز کی طرف بڑھی اور یہ کہتے ہوئے اسے کوڑے مارنے لگی کہ نادان لڑکے، تو ہمیں نصیحتیں کرنے آیا ہے. وہ اپنی پوری قوت سے اس پر کوڑے برسا رہی تھی. شہباز کے کپڑے تار تار ہو گئے اور وہ زخموں سے نڈال ہو رہا تھا. لیکن بدصورت ملکہ کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا اور لگاتار مارے جا رہی تھی. ایک بار جو زور کا کوڑا شہباز کی گردن پر لگا وہ گر پڑا اور اس کے گلے میں پڑے ہوئے لاکٹ کی زنجیر ٹوٹ گئی. لاکٹ شہزادہ طاہر کے پاؤں کے قریب آ کر گرا. شہزادہ طاہر نے اسے حیرت سے دیکھا اور اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا. اسے حیرت اس لیے ہو رہی تھی کہ اس کے اپنے گلے میں جو لاکٹ تھا وہ ہو بہو اسی طرح کا تھا. یہ لاکٹ شہزادہ طاہر کا خاندانی نشان تھا جو اس کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے گلے میں ڈالا گیا تھا. شہزادہ طاہر نے کئی بار چاہا کہ وہ کسی طرح شہباز کو اس ستم سے بچائے، لیکن وہ خود دیو کی حراست میں تھا. آخر بدصورت ملکہ نے شہباز کے ساتھ بھی وہی کیا جو شہزادی ماروخ کے ساتھ کیا گیا تھا. یعنی اس نے کچھ پڑھ کر شہباز کی طرف جو پھونک ماری وہ بھی پتھر کا بے جان بت بن گیا. پھر وہ شہزادہ طاہر کی طرف بڑھی اور اسے کوڑے سے مارنا چاہا، لیکن کوڑا اس کے جسم سے چھوا تک نہیں. ملکہ یہ دیکھ کر بہت سٹ پٹائی. شہزادہ طاہر بھی حیران تھا. ملکہ نے اسے بھی بت بنانے کے لیے جادو پڑھ کر پھونکا، اس کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا. پھر تو ملکہ نے اپنے تمام جادوئی حربے اس پر استعمال کر ڈالے، لیکن وہ بدستور کھڑا مسکرا رہا تھا. شہزادہ طاہر سوچ رہا تھا آخر اس پر دیووں کی ملکہ کا کوئی وار کیوں نہیں چلا. پھر اسے یاد آیا کہ اس کی وجہ پریوں کی ملکہ کا دیوا گھوڑے کا ننھا مجسمہ ہے، جس کی خاصیت یہ تھی جو اسے اپنے پاس رکھے اس پر کسی قسم کا جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا. آخر ملکہ نے حکم دیا کہ شہزادے کو قید خانے میں بند کر دیا جائے، صبح اس سے نمٹا جائے گا. شہزادہ طاہر کو لے جا کر قید خانے میں بند کر دیا گیا. آدھی رات سے زیادہ وقت گزر چکا تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. وہ شہباز کے لیے بہت افسردہ تھا اور قید خانے کی دیوار سے پیٹ لگائے شہزادی یاسمین کے متعلق بھی سوچ رہا تھا کہ شاید کل وہ بھی بدصورت ملکہ کی بھینٹ چڑھ جائے. شہزادہ طاہر بڑی بے چینی کے عالم میں تھا. اس نے اپنی جیب سے پریوں کی ملکہ کا دیوا گھوڑے کا مجسمہ نکالا اور بے خیالی میں اسے کپڑے سے صاف کرنے لگا اور سوچ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے، اس قید خانے سے باہر کیسے نکلے. صبح ہونے میں ابھی کافی وقت باقی تھا کہ اچانک اس نے ایک باریک سی آواز سنی، میرے مالک، میں آپ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں. طاہر نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ قید خانے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. ایک بار پھر اس نے یہی آواز سنی. اب جو اس نے اپنے پیروں کی جانب دیکھا تو ایک ننھا منا سا بونا اسے نظر آیا. شہزادہ طاہر نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس بونے نے، جس نے ریشمی اور سنہری کپڑے پہن رکھے تھے، جواب دیا، شہزادے، میں اس مجسمے کا بونا ہوں جو تم نے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے. جس کے پاس یہ مجسمہ ہو میں اس کا غلام ہوں. اب جو تم حکم دو اس کے لیے میں حاضر ہوں. شہزادے نے ہنستے ہوئے پوچھا، تم بھلا میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تم تو بہت ہی چھوٹے ہو. بونے نے کہا، شہزادے ہنسو نہیں، میں پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہوں، دریاؤں کے رخ موڑ سکتا ہوں اور تنہا بڑی بڑی فوجوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں. شہزادے نے کہا، اچھا تم اتنا کام کر سکتے ہو تو پھر مجھے اس قید خانے سے باہر نکالو، اور ہاں یہ تو بتاؤ میری مدد کے لیے تمہیں کس نے کہا ہے؟ بونے نے جواب دیا، اس مجسمے کو رگڑنے سے میں حاضر ہو جاتا ہوں. اب تم قید خانے سے باہر نکلنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لو. شہزادے نے آنکھیں بند کر لی اپنی، اور جب آنکھیں کھولی تو قید خانے سے باہر تھا. اسے یہ دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی. وہ سوچ رہا تھا یہ بونا تو بڑے کام کا نکلا. پھر وہ وقت ضائع کیے بغیر آگے بڑھا. اسے یقین تھا کہ بدصورت ملکہ اس وقت گہری نیند سو رہی ہوگی. شہزادہ طاہر مختلف کمروں اور برآمدوں سے گزر کر اوپر جانے والی سیڑھیوں کے قریب پہنچ گیا. سیڑھیاں طے کرتا اوپر پہنچا تو سامنے ایک بڑے شاندار کمرے کے دروازے پر ایک دیو کو پہرا دیتے پایا. سمجھ گیا کہ یہی ملکہ کی خوابگاہ ہے. بے آواز پاؤں سے وہ چلتا ہوا دیو کے پیچھے پہنچ گیا اور اتنی پھرتی سے اس پر حملہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا کہ وہ آواز بھی نہ نکال سکا. شہزادہ طاہر خوابگاہ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا. سامنے ہی بدصورت ملکہ کو تمام شیطانی قوتوں کے ساتھ سوتے ہوئے پایا. تمام ماحول بہت ڈراؤنا تھا اور وہ تلوار نیام سے نکال کر ملکہ کی طرف بڑھا کہ اسے سوتے ہوئے قتل کر دے. صبح ہونے والی تھی، اس لیے وہ جلدی اپنا کام ختم کرنا چاہتا تھا. جب وہ ملکہ کے پلنگ کے قریب پہنچا تو آہٹ سے وہ جاگ گئی اور خونخوار نظروں سے طاہر کی طرف دیکھنے لگی اور گرج کر کہا، تم یہاں کیسے پہنچے؟ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، ظالم ملکہ، تمہاری موت مجھے یہاں تک لے آئی ہے. بدصورت ملکہ نے اسے پکڑنے کے لیے تالی بجائی، لیکن تمام دیو رات کے جشن ختم کرنے کے بعد گہری نیند سو رہے تھے، اس لیے کوئی بھی نہ آیا. یہ دیکھ کر ملکہ نے اپنے جادو کے زور سے اسے گرفتار کرنا چاہا، لیکن رات کی طرح اس کا یہ حربہ دوبارہ ناکام ہو گیا اور شہزادے کا بال بھی بیگانہ ہوا.
اب تو ملکہ بہت खौफजदा हुई क्योंकि ताहिर तलवार लिए उससे बिल्कुल करीब आ गया था, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहा। शहजादा ताहिर उसका ये इरादा भांप गया। उसने फौरन बदसूरत मलका को चुटिया से पकड़ लिया और फिर एक ही वार से उसका सर तन से जुदा कर दिया। बदसूरत मलका की आखिरी चीख बहुत भयानक थी। उसका जिस्म बुरी तरह तड़प रहा था, उसकी आंखें हलकों से बाहर निकल आई थी, उसका चेहरा और ज्यादा बदसूरत हो गया। शहजादा ताहिर बहुत खुश था कि उसने एक जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। जुल्म करने वालों का आखिर यही हशर होता है और ऐसे वक्त में उन्हें कोई मददगार भी नहीं मिलता। देव की मलका के मरते ही चारों तरफ खूब अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद जब अंधेरा छटा तो शहजादा ताहिर ने शहबाज को अपने पास पाया, जो उसका शुक्रिया अदा कर रहा था और उसकी जुर्रतमंदी की दाद दे रहा था। बदसूरत मलका का तमाम तिलिस्म टूट चुका था और उसने जितनी लड़कियों को पत्थर का बुत बनाया था वो सब अब इंसानी सूरत में आ गई थी और तमाम शहजादा ताहिर का शुक्रिया अदा करने लगी। यहां तक कि मुल्क के तमाम देव भी ताहिर और शहबाज के एहसानमंद थे कि उन्होंने उनको एक जालिम और जाबिर औरत से निजात दिलाई। सच है, जालिम को उसकी कौम भी नापसंद करती है। दूसरी कैदी लड़कियां भी वहां आ गई थी। उसी वक्त आसमान से एक कालीन उड़ता हुआ आया और उनके करीब आकर उतरा। कालीन पर परियों की मलका थी। परियों की मलका ने शहजादा ताहिर को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। ताहिर बोला, असल मुबारकबाद का मुस्तहिक शहबाज है। उसके बाद परियों की मलका ने सबको अपने कालीन के जरिए उनके मुल्कों को रवाना किया। आखिर में ताहिर शहजादी यास्मीन को लेकर रोम रवाना हुआ। उसके वालिदैन के पास पहुंचाकर खुद अपने मुल्क यूनान को चला गया। शहबाज जब शहजादी मारूफ को लेकर अस्फहान बादशाह के महल में पहुंचा तो हर तरफ खुशी के शादियाने बजने लगे। बादशाह, जो शहजादी की बाजियाबी से नाउमीद हो चुका था, अपनी बेटी को पाकर इतना खुश हुआ कि उसने शहबाज को अपने गले से लगा लिया और उस वक्त तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। जब शहबाज ने अपने साथ लाई हुई पत्तों की राख, जिससे उसने चीते की लड़ाई के बाद अपना जख्म ठीक किया था, थोड़ी सी बीमार मलका को खिलाई तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई और उसका वो मर्ज जाता रहा जिसका हजारों हुकीम भी इलाज न कर सके थे। बादशाह ने शहबाज की मां को बुलाकर उन दोनों को अपने घर का फर्ज बना लिया और उन्हें काफी इनाम दिया। शहबाज की मां भी काफी मुद्दत के बाद अपने बेटे से मिलकर निहाल हुई जा रही थी। उधर शहजादा ताहिर जब अपने महल में पहुंचा तो उसके वालिदैन को यह मालूम करके बड़ी मुसरत हुई कि उनका बेटा कामयाब लौटा है। शहजादा ताहिर ने घर पहुंचते ही सबसे पहले वो लॉकेट जो शहबाज के गले से टूट कर गिरा था और उसने उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया था, अपनी वालदा को दिखाया और उसके मिलने का तमाम वाकया मां को सुनाया। ताहिर की वालदा यानी यूनान की मलका ये लॉकेट देखकर बेताब हो गई और उसने ताहिर से पूछा कि वो उस नौजवान को अपने हमरा क्यों नहीं लाया जिसके गले से ये गिरा था। ताहिर ने मलका को बताया कि वह इस्फहान के एक किसान का बेटा है और उसका नाम शहबाज है और वह शहजादी मारूफ को लेकर इस्फहान रवाना हो गया है। मलका ने ताहिर को बताया कि ये लॉकेट तुम्हारे बड़े भाई के गले में रहता था, जो बचपन ही में एक जंगल से गुजरते हुए हमसे खो गया था और उसकी याद में मैं आज तक आंसू बहा रही हूँ कि खुदा जाने मेरा बेटा कहाँ होगा और किस साल में होगा। शहजादा ताहिर ने यह सुनकर वालदा से कहा, क्यों ना अम्मी हजूर, इस्फहान चलकर शहबाज और उसके वालिदैन से मिला जाए और ये मालूम किया जाए कि उन्होंने ये लॉकेट कहां से लिया है। शायद उन्हें मेरे बड़े भाई के मुतालिक कुछ इल्म हो। मलका ने ताहिर की बात सुनकर कहा, हाँ ये ठीक है, हम आज ही इस्फहान को रवाना हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे के मुतालिक कुछ ना कुछ जरूर मालूम हो जाएगा। इस्फहान के बादशाह फेरोज को जब यूनान की मलका और शहजादे की आमद का पता चला तो वो खुद उनके इस्तकबाल के लिए आया और उन्हें बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ महल में लाया गया। यूनान की मलका ने इस्फहान के बादशाह और उसकी मलका को पहले तो उनकी बेटी के मिलने पर मुबारकबाद दी और फिर अपने आने का मकसद बयान किया। शहबाज को जब इल्म हुआ कि शहजादा ताहिर आया है तो वो फौरन अपनी मां के साथ उस कमरे में पहुंच गया जहां बादशाह, मलका, शहजादा ताहिर और उसकी वालिद बैठे थे। अलैक सलैक के बाद यूनान की मलका ने शहबाज को लॉकेट दिखाते पूछा कि ये लॉकेट तुमने कहां से लिया था। शहबाज ने जवाब देते हुए कहा, यह तो बचपन ही से मेरे गले में था, शायद मेरी मां इसके मुतालिक कुछ बता सके। इस पर शहबाज की मां ने बताया कि बहुत अरसा की बात है कि मेरा खामिद जंगल से गुजर रहा था कि उसने एक भेड़िए को एक मासूम बच्चा उठाए भागते देखा। उसी वक्त मेरे शौहर ने भेड़िए को मारकर बच्चे को बचा लिया और उसे घर ले आया। पहले तो हमने बहुत इंतजार किया कि जिसका ये बच्चा होगा वो ढूंढते ढूंढते हम तक पहुंचकर अपना बच्चा ले जाएगा, लेकिन काफी अरसा तक जब कोई ना आया तो हमारी चूंकि कोई औलाद ना थी, इसलिए इस बच्चे को हमने अपना बेटा बना लिया। ये लॉकेट उसी बच्चे के गले में था, हमने उसका नाम शहबाज रखा। कुछ अरसे बाद मेरा शौहर फौत हो गया और यही शहबाज जो आज आपके सामने जवान है मेरे बुढ़ापे का सहारा बन गया। शहबाज को यह सुनकर कि उसकी मां नहीं है बहुत हैरत हुई, उसे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। यूनान की मलका ने शहबाज को बेटा कहकर गले से लगा लिया और ताहिर से कहा, यही तुम्हारा बड़ा भाई है जो बचपन में हमसे बिछड़ गया था। दोनों भाई उठकर खूब गले मिले। ताहिर की तो खुशी की इंतहा न रही क्योंकि बरसों का बिछड़ा हुआ भाई उसे आज मिल गया था। शहबाज की बूढ़ी मां जिसने उसे पाला था वो भी बहुत मसरूर थी कि चलो सालों बाद शहबाज के हकीकी वालिदैन का तो पता चल गया और उनकी औलाद उन तक पहुंच गई। इस्फहान का बादशाह फेरोज शहबाज को उसकी नेकदिली और बहादुरी की वजह से पहले ही बहुत चाहने लगा था। जब उसे ये मालूम हुआ कि वो यूनान का शहजादा है तो उसने अपनी इकलौती बेटी मारूफ की शादी बड़ी धूमधाम से शहबाज के साथ कर दी।